Without wasting time, we are starting our interesting webinar. See, this is the most excellent webinar that you will going to have it, and everybody was waiting for it. They have seen like sir, others have got their webinar and all. Where is the expert webinar? That is the most awaited webinar, because see, here is the UPPSC dental surgeon 157 post exclusive webinar with the expert who has cracked this exam with the flying colors in the last year PSC when it was held in 2023. He has got the rank of 32. Mind it, it is a rank of 32, top 50 rank it is, and he will be guiding you how to approach this exam, how to do the questions, how, what is the scenario, how to fight this exam. He was in the same scenario where you are standing right now, and he is none other than the person, Dr. Vikram, we have got as an expert. He has done his MDS from KGMC, from Perio, and he has done the SRship in AIMS and KGMC. So he is the best person. I think in the UP, whoever can guide you, he's the best person to guide you for this UPPSC dental surgeon. And please, this will be the most exclusive webinar. And for this only, you have enrolled this test series. Everybody was asking like, sir, add us in the test series, add us in the test series. What is the purpose of adding you in the test series if you don't know how to move forward, how to prepare for the exams? So this is the thing that we have brought everything here. And please, we are welcoming Dr. Vikram, none other than one of the greatest person who has got the greatest academic excellence and who is right now enjoying his duty, and for which you are going to give this exam. So Dr. Vikram, please can you introduce yourself a bit with these participants, because they would love to like interact with you. Dr. Vikram, the mic is with you. Dr. Vikram sir, kindly unmute. अपने आपको unmute करो. You can unmute yourself. अभी unmute नहीं हुआ. Please put on your video also, Dr. Vikram. Yes, sir. Am I audible, sir, now? Right. Okay. Fine, sir. So thank you so much, sir, for such a generous introduction. Sir, I am Dr. Vikram, and everyone, a very happy New Year to all of you. And we should start on a very positive note, discussing about the most awaited and very important examination, which is UPPSC. I am Dr. Vikram. I have done my BDS from Naya Dental, Mumbai. My MDS is from KGMC, and my SRship is from KGMC and then AIMS Jodhpur. So today I will be guiding you. My rank in UPPSC 2023-24 was 32 in general category, and I will be guiding you today about the preparation part of UPPSC. So that is the thing. So, sir, first of all, if you want, sir, any question if you want to guide through? Sir, guys, we will be breaking this webinar session by session. Our admins will start asking the questions. We have prepared the most asked questions from the students. That's why we delayed our webinar for 1 or 2 days. And now we are here with all your questions. If still we are left with anyone, we are very sorry. You can just put it in the chat section. We are starting this webinar. Thank you so much. Sir, what is this UPPSC dental surgeon exam? Please, can you like say a bit to the students, because this is very important. People are asking this every day, like sir, UPPSC dental surgeon 157 post 150. It is next to NEET MDS. It has become like so much participant, like we have introduced like so much of participants are there every year. It is increasing the participant and all. Why there is so much of caution but for UPPSC dental surgeon only? Yes, sir. I'll speak about it, sir. So first of all, there is UPSC and then there is UPPSC. So UPSC is Union Public Service Commission, which is a central government job. UPPSC is by UP state government for UP state government job, which is conducted by the body called UP Uttar Pradesh Public Service Commission. So that is examination conducting body. So that's why UPPSC. It is a UP state government job, and if you qualify it, you will be directly posted as a gazetted officer. If you know, gazetted officer means someone who can attest your documents. So it is quite a prestigious job, and there are different aspects of it. First of all, I would say UPPSC as a public service commission, it is one of the most punctual and most prestigious public service commissions in India. It is the pattern and everything in civil services part also. It matches to the Union Public Service Commission, UPSC. So it is very prestigious. And why I stress about UPPSC, why I prefer UPPSC above any other state government state dental exam is UP as a state. I have lived in Mumbai, Lucknow, then I went to Jodhpur, and now again I'm back in UP. So I know all of you, most of you will be from North India, but even from South India itself, UP is a very diverse state, very well connected state. Roadways are awesome.
there is air connectivity to various parts of the country. Food is good, atmosphere is good, so it gives you a very good experience for life in UP. So that's why I think there has to be a personally for me, and I guess if you are aware about it, so in that scenario you will be fascinated about joining state government services in UP state. Secondly, the salary part. The salary, it is 1 lakh around. If you roughly, I will tell you 1 lakh around. And after 8th pay commission, it is going to increase by 25,000 to 30,000 itself. So you can see it is one of those states who gives their dental surgeons a lot of salary at the higher end, which is comparable to Delhi or Haryana. So all other states gives you a bit less of a salary, 70,000, 80,000. That's the thing. Sir, like, what is the current salary you are getting like? Sir, I said roughly after income tax deduction, it will give you 1 lakh. Okay, sir. Okay, okay. And just want to know, like, where are the postings of UPPSC dental surgeons? Like, because sir, ये लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ पे पोस्टिंग होता है. इनको अपने सिटी का भी मिल सकता है या फिर आसपास सिटी का मिलता है, लाइक कहाँ मिलता है? क्योंकि कई लोग मैरिड भी होते हैं, कई लाइक मैरिड कपल्स भी लाइक दे गेट सेलेक्टेड टुगेदर एंड ऑल. many हाँ. many things are there. Like for the girls also they prefer close to the nearby states and all. तो ऐसा क्या होता है लाइक पोस्टिंग, और जब वो चीजें होती हैं तो कैसे होती है? सर पोस्टिंग का ऐसा है कि आप क्वालिफाई करते हो एंड देन एक उनके पास वैकेंसी लिस्ट होती है जो कॉन्फिडेंशियल होती है. वो आपको जब आप कई बार जैसे 2019 में उन्होंने एक रूरल और अर्बन वाला भी एक पार्ट है जो इसमें थोड़ा सा हाँ, बताइए. यस सर. रूरल अर्बन में मैं बताऊं आपको, एक्चुअल में ये जो CHCs होती हैं, ये यूजुअली नगर पंचायत होती हैं. ये ऐसा नहीं होता कि आपको बिल्कुल ऐसे गांव में दे दिया. गांव बेसिकली सब सेंटर्स एंड PHCs जो होती हैं वो गांव में होती हैं. डेंटल सर्जन की पोस्ट जो अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो प्लान रहता है, इट इज आइदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो CHC हैं, या फिर 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक कॉन्सेप्ट है यूपी में, जहाँ पे 100 बेड के हॉस्पिटल्स होते हैं विच आर वेरी वेल इक्विप्ड. वहां पे सारे स्पेशलिस्ट होते हैं. तो नगर पंचायत बेसिकली आप ऐसे समझो कि जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जो उसका जिला मुख्यालय होता है, उससे थोड़ा सा लेवल कम, विच विल बी वेरी वेल कनेक्टेड टू एनी जो नियर बाय जो भी बड़ा आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, उससे आप वेल कनेक्टेड रहोगे. तो ऐसा कभी नहीं होगा. यूपी एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द यूपी, मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होगा आप कच्चे पगडंडियों से जा रहे हो पोस्टिंग के लिए या एकदम ऊबड़ खाबड़ सड़क है. नो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट. आप 1 घंटे के अंदर अगर आप किसी भी साइड हो, अगर आप पूर्वांचल साइड हो, तो आपको जो सिटीज हैं, वाराणसी है, चाहे गोरखपुर है, जो भी बड़ी सिटीज हैं वो है. लखनऊ से आपकी कनेक्टिविटी अच्छी रहती है और वेस्टर्न साइड तो है ही. तो ये एक एस्पेक्ट होता है अगर आप पूरे यूपी की बात करो. फिर अगर आप कहो कि वाइफ हस्बैंड दोनों हैं, तो आपको वो ऑप्शन देते हैं. आप एक एप्लीकेशन लिख के आप बेसिकली उनके जो स्वास्थ्य सचिव होते हैं, आप उनको कन्वे करते हो कि सर ऐसा ऐसा है, मैं मैरिड हूँ या मेरा कोई बच्चा है, अभी छोटा है, ऐसी चीजें वो कंसिडर करते हैं. आप उनको लिख के दीजिए, दे विल कंसिडर. सो दैट इज द थिंग. प्लस एक कुछ वो लोग कभी कभी एक मॉड्यूल अपनाते हैं कि अगर आप यूपी के बाहर, अगर आप यूपी के हो, तो आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है जहां से आपका आधार कार्ड वगैरह है, तो आपको उसके नियर बाय देंगे. सेम नहीं देंगे, नियर बाय देंगे, जो कि ज्यादा दूर नहीं होता. आउटसाइड स्टेट्स के लिए उनका एक अलग प्लान होता है कि अगर आप फ्रॉम दिल्ली साइड से हो, राजस्थान साइड से हो, तो आपको वेस्टर्न यूपी का ऑप्शन देंगे कि आप वहां पे रह लो. और अगर आप पूर्वांचल साइड से हो, बिहार साइड से हो, तो उधर के डिस्ट्रिक्ट्स देंगे आपको. सो कंसिडरेशंस होते हैं. ऐसा नहीं होगा आपको रैंडमली कि आपको एक दिन पता चला कि अरे मेरी पोस्टिंग वहां आ गई. ऐसा नहीं होगा. यूपी Bye, गवर्नमेंट bye. थिंक्स लाइक दिस, लाइक और नॉट, लाइक आपने इतना आसान तरीके से बताया, तो क्या गवर्नमेंट इतना सोचती भी है? लाइक ये बहुत, बहुत अरे बड़ा सर सवाल है. बहुत, सर बहुत है. मैं मतलब आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर द एंटायर दिस. पहले तो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी आपकी फटाफट एग्जाम लेती है, इंटरव्यू कंडक्ट कराती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहती है. एक तो ये है, प्लस पोस्टिंग्स जो स्वास्थ्य मंत्रालय है सर हम लोगों का, वो पोस्टिंग वगैरह की चीजों में भी बहुत ही आपको क्लैरिटी के साथ चीजें करती है. बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है. आप मेल करो, आपको मेल का रिस्पॉन्स आएगा. सो दीज आर द थिंग्स. मतलब इट इज नॉट समथिंग कि अरे गवर्नमेंट है सोई हुई है. नो, इट विल गिव यू. आप एग्जाम क्लियर करो, आपको मजा आ जाएगा. सर एक सवाल बहुत लाइक रेकनिंग है, लाइक एवरीबॉडी इज लाइक सर्चिंग एवरीवेयर एंड ऑल, दे आर फिलिंग अप द फॉर्म के अंदर भी लिखा हुआ है, और लास्ट ईयर कुछ और था, इस साल कुछ और बदल गया है. सर ये BDS MDS सारे, लाइक हमने भी बोला है और बहुत लोगों ने भी बोला है, लाइक क्या BDS MDS सारे एलिजिबल हैं क्या? लाइक सर सारे BDS, यस सर, BDS MDS आप आपके पास रजिस्ट्रेशन जो है, आप डिग्री सर्टिफिकेट, आपके इंटर्नशिप हाँ सर. कंप्लीशन और इंटर्नशिप कंप्लीशन और आपकी BDS डिग्री कंप्लीट हुई रहनी चाहिए.
है ना, रजिस्ट्रेशन और ये सब चीजों के लिए अभी आप फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूंगा सर आप ये फॉर्म फिल सवाल मैं थोड़ा-सा फ्रेम कर दूँ, बच्चे भी समझ जाएँगे। सर ये अदर स्टेट के भी बच्चे इसमें हैं, जिनके पास यूपी डेंटल काउंसिल नहीं है और कई सारे यूपी स्टेट के भी हैं बच्चे जिनका डेंटल काउंसिल एक्सपायर कर गया है या फिर नहीं है किसी वजह से या कोई भी रीज़न हो, अगर उनके पास नहीं है और फॉर्म में फिलिंग के दौरान भी हमने देखा है कि कहीं कुछ डिटेल्स नहीं माँगा जा रहा, बट फॉर्म के अंदर एक जगह लिखा हुआ है कि यूपी डेंटल काउंसिल इज़ मैंडेटरी। तो इसका क्या अंतर है? आप थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि सर आपसे बेहतर तो सर नहीं कोई बता सकता। सर मैं ये कहूंगा कि हालांकि उन्होंने थोड़ी एम्बिग्यूटी रखी है वहां पे, उन्होंने क्लियरली, कई बार ऐसा होता है सर कि जब वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं अपने, मुझे एमपी का जहां तक याद है, एमपी में जब वो कॉलम फिल करवाते हैं तो वो लिखते हैं कि एमपी स्टेट डेंटल रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करिए। राइट यहाँ राइट जैसे यूपी में ऐसा नहीं है तो उन्होंने थोड़ी एम्बिग्यूटी छोड़ी है। बट मैं ये कहूंगा इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दिस पर्टिकुलर, अगर आपसे वो 5,000 का फॉर्म भरा रहे होते तो समझ में आ रहा था सर। ये अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है, सीटें इतनी ज्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई नुकसान है अगर आप फॉर्म फिल करो। आप फॉर्म फिल करो, ये सोच के फिल करो कि आप जो है आप एग्जाम में बैठ रहे हो, नितिन सर ने जैसे गाइड किया हुआ है, आप मेल करो अगर आप आउटसाइडर हो। देयर आर चांसेस, देखिए लंबा प्रोसेस है, 5-6 महीने लगते हैं पूरा चीज होने में, डेवलप होता है। तो ये सारी चीजें वो कंसिडर, अगर ऐसी चीजें हो रही, अगर उनका अभी मन भी है कि नहीं हम बाहर वालों को नहीं अलाउ करेंगे, देयर आर चांसेस दे माइट कंसिडर इट। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सर, जैसे कई बार ऐसा हुआ जब मैं पीजी में था तो 2000 वो लास्ट एग्जाम की बात है, उस टाइम ऐसा हुआ था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पीजीज की बहुत ये चल रही थी कि क्या होगा क्या होगा। फाइनली उन्होंने पिछली बार जो एग्जाम हुई थी उन्होंने कंसिडर किया, जो प्रमुख सचिव है, थर्ड ईयर एग्जाम वालों को एग्जाम देके आप आके ज्वाइन करो, सेकंड ईयर वालों को भी उन्होंने इस तरह से लीवे दिया। तो दे आर रिस्पॉन्सिव अबाउट द कंसर्न्स द स्टूडेंट्स आर हैविंग। सो आप फॉर्म फिल करो, आप बिल्कुल फॉर्म फिल करो, आप प्रिपेयर करो, आपका फायदा ही है, मैं यही कहूंगा। तो अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हो, वेरी वेल एंड गुड। अगर बहुत वर्स्ट सिनेरियो, लक खराब रहा, फिर भी आपके लिए वो फायदेमंद ही है। आप इसको छोड़ो मत, इस चीज को सोच के कि क्या है, एम्बिग्यूटी के बदले आप अपना अपॉर्चुनिटी कम मत करो, बहुत कम आती है अपॉर्चुनिटी। जी सर जी ये मेरा एक सवाल था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर जो अदर स्टेट की पीएससी हैं और जो अभी यूपीएससी है, अगर इसको ब्रॉडर लेवल पे अगर कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस क्या है। और एक और मेरा सवाल है कि अगर कोई लाइक क्लिनिक कर रहा है और जो क्लिनिक नहीं कर रहा है, उनके में क्या डिफरेंस होगा सर? लाइक अगर वो इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो क्लिनिक छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसमें एक नॉन प्रैक्टिसिंग एनपीए का भी मेंशन है। तो सर क्या डिफरेंस आता है, आप ये भी थोड़ा सा बताएं। और अदर पीएससी से, अगर स्टेट की पीएससी से कंपेयर करते हैं तो क्या डिफरेंस आता है यूपी पीएससी में? सर एक चीज पहले तो मैं ये कहूंगा कि एक तो टफ है ये एग्जाम। यूपी की कोई भी एग्जाम होगी, यूपी का साइज एंड जो पॉपुलेशन है सर, इट इज लाइक एक अपने आप में कंट्री है। तो ये टफ एग्जाम है। अगर आप देखो तो जो सक्सेस रेट है, फाइनल सक्सेस रेट अगर मैं बताऊं तो इट इज अराउंड 1.5%। इट इज टफ, वो तो है। बट इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज क्या है यूपी के साथ, यूपी स्टेट सिविल सर्विसेज में भी एंड ये डेंटल सर्जन में भी, इनके साथ क्या है कि जो डेंटल की मैं बात करूं तो डेंटल में जो उनके क्वेश्चंस रहते हैं वो इतने सिंपल होते हैं, वो आपको कहीं पे भी, जैसे आप अनलाइक हरियाणा, आपको अगर याद हो, या नीट जैसा पेपर होता है, 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे दे रहे हैं। यूपी पीएससी ने 2019 और 23 में ऐसा पैटर्न फॉलो किया है, जो कि हमें फॉलो करना चाहिए, हमें दूसरे स्टेट का नहीं करना चाहिए। बिकॉज दे है, अगर इन्होंने 2 साल एक ही तरह का पैटर्न रखा है तो हमें इस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि दे हैव मेड अप अ माइंड कि हमें ऐसा ही क्वेश्चंस पूछने हैं। तो कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो क्वेश्चन बेसिकली रहते हैं सिंपल। बस ये रहता है कि जो वो किस तरह के कैंडिडेट चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास नॉलेज का एक ब्रॉड बेस हो, आपका बेस ऑफ नॉलेज हो वो ब्रॉड हो। ऐसा नहीं कि आप एक टाइप के क्वेश्चन में जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसके ऑप्शंस में आप लोग जो डिबेट करते हो नीट और वगैरह में, वैसे क्वेश्चंस वो नहीं पूछना चाहते। वो चाहते हैं आप सिंपल क्वेश्चन, आपको सिंपल बेसिक्स पता हो, बीडीएस लेवल के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपको पता हो, और डेंटल क्वेश्चंस प्लस मेडिकल साइड के क्वेश्चंस जो बेसिक्स हैं। मैं कहूँ आपको मैं कहूंगा, अगर एक फॉर एग्जांपल एक ट्यूबरकुलर अल्सर है, तो आप कहोगे कि ये तो जनरल सर्जरी का क्वेश्चन हो गया। बट अगर आपसे कोई उसका वुंड का मार्जिन पूछे, तो क्या आप उसको कहोगे कि ये जनरल सर्जरी का क्वेश्चन है इसलिए इट इज गोइंग टू बी टफ? नो। मतलब वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, उनका ब्रॉड बेस ब्रॉड होगा, एंटायर डेंटल्स के सब्जेक्ट्स पूछेंगे, मेडिकल के भी पूछेंगे, बट इट विल बी सिंपल। सो दैट इज द थिंग, ये आपको पिक करना है, एंड दैट्स व्हाई, इसी वजह से चाहे आप नीट प्रिपेयर कर रहे हो, आप क्लिनिक खोल के बैठे हो, आप अभी कुछ और कर रहे हो, नहीं कर, दिस इज डे वन। आप यहां से प्रिपेयर करो ये सोच के कि वो जो सिंपल क्वेश्चंस है ना, वो किसी नीट टॉपर के लिए भी और आपके लिए भी वो सिमिलर होने वाला है ना। इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे, वो ऐसा नहीं होगा कि नीट टॉपर कुछ उसमें अलग बता देगा, आप कुछ अलग बताओगे। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन का जो लेवल ऐसा है ना कि वो आपको सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करा रहा है। एंड दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक बहुत अच्छा चांस है इस एग्जाम को क्रैक करने का। बाकी जो जीएस पार्ट है, इट प्लेज अ मेजर रोल, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये इस एग्जाम को और लेवल प्लेइंग फील्ड कर देता है। अगर आप हम लोग इतने हजार, अगर 10,000 बच्चे दे रहे हैं, जीरो जो है, डे जीरो जो है ना, वो सबके लिए इक्वल है।
आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर जब आगे जब डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये सारे सवाल करके। मैं अब चाहूंगा सर कि पैनल ऑफ एक्सपर्ट थोड़ा बदलेगा और आपसे डॉक्टर नितिन आपसे सवाल करेंगे। हाँ डॉक्टर नितिन, आप माइक आपके पास है एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। सबसे पहले नववर्ष की सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, विक्रम सर और सभी को। तो विक्रम सर, मैं आपसे एग्ज़ामिनेशन पैटर्न पे बात करना चाहूँगा कि यस सर। जैसे कि यूपीपीएससी का ट्रेंड रहा है, तो मुझे आप ये बताइए कि कितने क्वेश्चन आते हैं इस एग्ज़ाम में? क्या डिमार्केशन होता है डेंटल प्लस मेडिकल प्लस या फिर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चनों का? क्या ड्यूरेशन होता है एग्ज़ामिनेशन का? और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? तो इसके बारे में कुछ बताइए। यस सर। बेसिकली सर ये 2 घंटे का एग्जाम होता है। 150 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, बट अलग-अलग सेट होते हैं। उसमें हमेशा जो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 और 120 का उनका है। तो 30 क्वेश्चन वो पहले जीएस के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज एंड थोड़े बहुत मैथमेटिक्स के। वो 30 क्वेश्चंस पहले होते हैं। 120 क्वेश्चंस आपके डेंटल की स्पेशलिटी के होते हैं, डेंटल प्लस मेडिकल बेसिकली। बट वो हेवीली टुवर्ड्स डेंटल साइड होते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होते हैं। वो रहेंगे नेगेटिव, आपको 2 घंटे का टाइम देंगे वो। क्वेश्चंस का लेवल ऐसा रहेगा कि आपको 2 घंटा ज्यादा लगेगा। ऑनेस्टली बताऊं अगर आपको, तो वो है। एंड तो आप समझ सकते हो कि फिर से जो चीज मैं कह रहा था कि यहाँ कोई आप बैठ के पेपर पे दिमाग लगा रहे हो, 5-5 मिनट सोच रहे हो, इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है सर। अगर आप ये 0.33 वाला है, मतलब 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो वो आपके एक हुँ। राइट क्वेश्चन को वो कैंसल आउट कर देगा। तो डॉक्टर ये साहब, है। इसका जो एग्ज़ाम होता है, क्या ऑनलाइन होता है या फिर किसी परीक्षा मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है? ऑफलाइन है सर, पैटर्न ऑफलाइन है। अच्छा, अच्छा। कंप्यूटर बेस्ड होता है या फिर वैसा होता है ओएमआर बेस्ड होता है? ओएमआर बेस्ड रहेगा सर। ओके, ओके। तो डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि इसकी लास्ट ईयर की जैसे कि 150 क्वेश्चन आए थे, तो उसमें से यूआर की कट ऑफ्स क्या थी? मतलब एक कट ऑफ का एक आइडिया दीजिए सर। कितने यस। क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करके आए या फिर उसे आना चाहिए? यस सर। जैसे कट ऑफ की बात करूं सर, तो अगर आप देखो तो उन्होंने रिटन में लास्ट टाइम जैसे 10,000 का अप्रॉक्स बच्चों ने एग्जाम दिया था। उन्होंने 459, जहां तक याद है, 459 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था रिटन में। एंड उसके बाद उसी में से फिर उन्होंने 174 को उन्होंने ये कर लिया था। तो बेसिकली जो सर रिटन मार्क्स का जो है मेरिट, उसमें इस तरह से बनता है सर कि उन्होंने लास्ट टाइम 60% से अबव जिन्होंने स्कोर किया था, लाइक 150 में 90 क्वेश्चन जिन्होंने राइट किए थे, राइट क्वेश्चन मतलब उनको 90 क्वेश्चन के मार्क्स मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन सही किए और उसके के बाद 15 या 20 रॉन्ग कर दिए, वैसे नहीं। तो 90 क्वेश्चन का आप ये मान के चलिए कि 90 क्वेश्चन कट ऑफ था। लेकिन अगर आप मेरिट की बात करो, तो जहां तक मैंने लोगों से बात की, मैंने अपने मार्क्स देखे ये सब चीजों से, तो मुझे ऐसा लगा कि आपको समवेयर अबव 96 97 अगर आप हो, तो आप फाइनल मेरिट की तरफ आपके चांसेस स्ट्रांग है। ओके, ओके, ओके। डॉक्टर साहब, अब मुझे आप ये बताइए, क्या रिटन एग्ज़ाम के बाद कोई सक्सेसिव स्टेजेस भी होती हैं इसकी, या कि लाइक इंटरव्यू होता है या कुछ और भी चीज़ें होती हैं क्या फाइनल सिलेक्शन से पहले? यस सर, इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू का जो उन्होंने वेटेज दिया हुआ है, लास्ट टाइम उन्होंने मेंशन नहीं किया था, बट इस साल उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि वो 25% वेटेज इंटरव्यू को देंगे। पहली बार जब आप रिटन एग्जाम देते हो, तो वो एक लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की एक लिस्ट निकालते हैं। वो इस बार भी अराउंड वही आप मान के चलिए कि 450 के अराउंड, 420 430 उसके अप्रोक्सीमेटली कैंडिडेट्स की एक लिस्ट जारी होगी। उनको वो बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं जितने भी जो फाइनल वैकेंसी है। जैसे इस साल 157 अगर वैकेंसी है, तो एक लास्ट में आपको एक 157 की आपको एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करते हैं आफ्टर इंटरव्यूज। ओके, ओके, ओके। तो बहुत अच्छा चांसेस है 500 में आना, लाइक तो अगर की जाए तो आ सकते हैं आप लोग। यस जी, यस। जी। सो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जीएस में क्वालिफ़िकेशन और डेंटल पार्ट में क्वालिफ़िकेशन करना एक सेपरेटली क्वालिफाइंग होता है? लाइक मैंने एमपीवीएससी में देखा था, वहाँ पर अलग-अलग सेपरेटली क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर क्या ऐसा ओवरऑल होता है, क्या सेपरेट है? सर यहाँ ओवरऑल है, यहाँ सेपरेट नहीं है। यहाँ आपको फाइनल जो लिस्ट है टोटल कंबाइन होके आपको आएगी। और यही इसी बात के लिए एक्चुअल में जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जो 30 क्वेश्चंस हैं, उसको कई कैंडिडेट्स होंगे जो ये सिर्फ ये कह सोचेंगे कि मैं सिर्फ डेंटल क्वालिफाई डेंटल से मैं उतने मार्क्स ले आऊंगा। इट इज वेरी टफ। और जीएस यहीं पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर। राइट सर। सर, ऑफ़िशियली यूपीपीएससी सिलेबस रिलीज़ करता है या फिर पहले कभी 2023 में किया था क्या? या इस सिलेबस कहाँ मिलेगा हमें? सिलेबस जो सर उन्होंने एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देते हैं, ऑल डेंटल सब्जेक्ट्स, मेडिकल सब्जेक्ट्स एंड जीएस। जीएस, जीके प्लस थोड़े बहुत मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस कह के वो एक निकालते हैं। आपको बहुत स्पेसिफिक टॉपिक वाइज तो वो नहीं बताते हैं आपको। बट अगर आप ओवरऑल एक ट्रेंड देखो कोई भी एग्जाम का, जैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो आप यही समझते हैं कि बेसिकली डेंटल साइड के सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे। मेडिकल साइड के वो कवर करेंगे, मेडिकल भी वो कवर करेंगे। और आपसे जनरल अवेयरनेस में, वो जनरल स्टडीज में आपसे कुछ चीजें पूछते हैं। जैसे यूपी बड़ा स्पेसिफिक है इस मामले में कि वो आपसे नेशनल लेवल के जीएस सब्जेक्ट्स पूछता है। जनरल नॉलेज भी उनके नेशनल लेवल के होते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस कभी वो यूपी के पूछ लेते हैं, अदरवाइज वही रहता है। और 2-3 क्वेश्चंस उनके मैथ्स के रहते हैं। ये बहुत ही उन्होंने एक
पैटर्न बड़ा सेट सा रखा हुआ है, क्योंकि मैं जैसे जब मैंने पेपर एनालाइज किया था इस डिस्कशन के लिए, तो मैंने यही देखा कि 2019 और 2023 दोनों बार उन्होंने 22 क्वेश्चंस जीएस के पूछे थे। हम उसके टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और Right. जीके उनके 5 और 6 क्वेश्चंस, और मैथ्स के 2 और 3 क्वेश्चंस। तो इस तरह से उनका एक पैटर्न बना हुआ है। राइट, राइट। डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूंगा डॉक्टर अंकित सर को बोलना कि आगे का कंटिन्यू करें। यस सर। विक्रम जी, मेरा एक सिंपल सा डाउट है। अभी आपने बोला कि 150 क्वेश्चंस हैं, 120 डेंटल है, 30 आपके जीएस के क्वेश्चन है। तो अगर और 90 के आसपास आपने कट ऑफ बताया, अगर मैं बहुत अच्छी तरह से डेंटल करके जाऊं और जीएस को बिल्कुल ही छोड़ दूं, क्या पॉसिबिलिटी है? बहुत मुश्किल है सर। आप ये मतलब एक जो एग्जाम का सर जो एक साइकी है, मतलब सबसे पहले हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमें ये समझना होता है कि वो किस टाइप के कैंडिडेट को वो चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए 30 क्वेश्चंस ऐड करना ये ऐसी चीज है जो वो चाहते हैं कि आप उसके लिए प्रिपेयर करके आओ। अगर आप वो प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो, तो एक तो पहली बात कि आप वो जो उनके जो जिस टाइप के कैंडिडेट वो चाह रहे हैं, आप उसको थोड़ा सा वायलेट कर रहे हो। सेकेंडली, वो कितना फिजिकली पॉसिबल है कि आप 120 क्वेश्चंस में आप जो है अराउंड 100 क्वेश्चंस, मतलब मैं यही मान के चल रहा हूँ कि 97 98 अगर आप रखना चाह रहे हो, तो आपको कितना 105 क्वेश्चन आप राइट करो, उसके बाद 20-30 क्वेश्चन आप मतलब 15 नहीं, आप उससे भी मतलब मान के चलो आपकी 100 एक्यूरेसी आपकी बहुत बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि वो थोड़ा करेंगे, कुछ कैंडिडेट्स हमेशा रहेंगे, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि आप जीएस जीके भी पढ़िए, डेंटल भी पढ़िए, और एक बैलेंस बना के चलिए। आपको बहुत अच्छा एडवांटेज देगा जीएस के जो क्वेश्चंस हैं, इधर आप प्रिपेयर करोगे। अगर आप 10 क्वेश्चन का भी अगर आप लेके चल रहे हो लीवे, तो आप डेंटल में आपको वो इट विल सेव यू फ्रॉम सिलेक्शन एंड नॉन सिलेक्शन। सर चाहे मेरा एक सवाल है सर, इसी पे है कि सर देखिए, मेरे जैसे एवरेज बच्चे, सर देखिए आप तो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है सर, तो आपके लिए तो चीजें बहुत आसान एक तरह से रहेंगी, लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो मेरे जैसे हैं जिनको बहुत एवरेज है। बट सर देखिए, अब मेरे को ये लगता है कि एक स्टूडेंट को एक पुश चाहिए होता है, तो अगर वो ये चीज समझे कि सर अभी भी अगर उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि सर देखिए यहाँ मिक्स ऑडियंस है, यहाँ फ्रेशर भी है सर, यहाँ पे 5 साल 10 साल क्लिनिक चलाने वाले बच्चे भी हैं, एक ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे भी सीनियर्स हैं। सर मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि सर वो लोग भी अगर चाहें तो वो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ना? और जो जीके का जो आप सब कह रहे हैं उसको भी बच्चे बहुत लाइटली आजकल ले रहे हैं, क्योंकि 30% है, 30 क्वेश्चंस है, और ये सोचते हैं कि सर हम 120 में से डेंटल कर लेंगे। एक बहुत अच्छा पॉइंट डॉक्टर अंकित ने उठाया है। मैं इस पे थोड़ा सा और आपको कहूंगा कि सर इस पे थोड़ा सा और रोशनी डालिए, क्योंकि सर जो जीके पार्ट है उसमें एटलीस्ट 10 से 15 नंबर भी लाए, तो अगर वो डेंटल में वो चीज गलत करते हैं तो उसको कवर अप कर सकते हैं। और एक्यूरेसी तो सर सब में नहीं होती, सर बहुत कम में होती है सर, एक्सेप्शनल जैसे आप हैं सर, लेकिन सब में नहीं हो सकती। तो एक बहुत लाजमी सवाल है, क्योंकि सर यहाँ पे सारे एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं है, सबको एक एवरेज, क्योंकि बहुत टाइम से भी कई लोगों ने पढ़ाई छोड़ रखी है जो क्लिनिक्स में है या फिर जो पोस्ट क्लिनिक, तो सर इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। सर डेफिनेटली पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया आपने। सर एक चीज मैं बताऊं, अगर लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है, अगर वो बहुत बेसिक है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर उसमें डिफरेंस नहीं है, मतलब वो अगर हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, जैसे मैंने बताया सेंटेंस वाइज क्वेश्चन अगर वो नहीं है, लंबे लंबे सेंटेंस, बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, कौन से वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो बेसिकली उन्होंने वो बैरियर ही तोड़ दिया कि आप स्मार्ट बच्चे हो या आप एवरेज बच्चे हो, उन्होंने वो तोड़ दिया। एकदम सीधी सी बात है, उन्होंने बस आपको बस ये कहा कि जाओ डेंटल के लिए। मैं तो इवन ये भी सजेस्ट करूंगा, जैसे आपके पास अगर 8th वॉल्यूम हो पल्स की, 7th 8th, वो वाली वॉल्यूम जो आपके पास 3 वॉल्यूम वाली नहीं है, या इवन अगर वो नहीं है, तो 3 वॉल्यूम वाली जो पल्स आई है, उसमें से जो आपके 90s और अर्ली 20s के जो क्वेश्चंस हैं, जो आप देख के कह सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो सिंपल है, ये एक सिंपल एक फैक्ट है इसमें, और अगर ये फैक्ट मुझे आता है तो मैं आंसर कर दूंगा। तो यही पॉइंट बार बार सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस का लेवल बहुत सिंपल है। आप बस ये करो, मेडिकल और डेंटल साइड का जो क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और बहुत डीप में जाके क्वेश्चन सॉल्व ना करो। आप एकदम दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस वो नहीं पूछना चाह रहे, आपके वो चाह रहे हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में हो, और आप उस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करो। एक तो ये बात हो गई सर। तो ये आप बिल्कुल भी दिमाग से कोई भी स्टूडेंट ये निकाल दें कि चूंकि मैं एवरेज हूं, मेरे बीडीएस में 55% मार्क्स हैं, 50%, मैं 70% वाले से कैसे कम्पीट करूंगा। वो आपको उनसे कम्पीट कराना ही नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि ये बुक है, आप जाके 8 घंटे 10 घंटे जाके बुक खोलो, सिंपल क्वेश्चंस है, पढ़ो, लगाते रहो क्वेश्चंस, याद करते रहो, उसको सॉल्व करते रहो, और जीएस को मत छोड़ो। वो आपसे ये चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप जीएस छोड़ेंगे, आपने अगर रिटन क्वालिफाई कर लिया, मैंने शायद ग्रुप पे भी ये चीज देखी थी, जिसमें कि ये है कि आप अगर जीएस को सॉल्व नहीं कर, अगर आप जीएस पढ़ के नहीं गए, इंटरव्यू में जो पैनल होता है सर, वहां डेंटल के स्पेशलिस्ट 1 या 2 रहेंगे, बाकी जो पूरा पैनल होता है 4 से 5 लोग, वो होते हैं पीएससी के।
और उनको इस बात से बहुत खुन्नस होती है, क्योंकि मैंने 2 इंटरव्यू के बारे में 2 सक्सेसिव इंटरव्यू मैंने देखा है ये चीज। मैंने नहीं, मतलब एक में एक्सपीरियंस सुना और एक में मैंने खुद फील किया। वो अगर आप डेंटल के स्मार्ट हो और आप अगर आपको जीएस नहीं आ रहा है, बेसिक चीजें आपको नहीं पता है, तो वो आपको इंटरव्यू में आपको ऐसा मार्क्स क्या देंगे, नोबडी नोस, वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो आपको ऐसा फील करा के भेजेंगे कि बच्चे, नो मैटर तुम्हारा डेंटल नॉलेज कितना है, बट आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट यू। वो इस तरह का फील दे के आपको भेजते हैं। दैट्स वाई ये जीएस का आपका कॉन्फिडेंस तभी बनेगा जब आप जीएस के लिए भी प्रिपेयर करके जाओ। और उसी में हमारा जो ये टेस्ट सीरीज है, आप उसको पकड़ के चलो, आप है ना, वो आप उसको सॉल्व करो, प्रिपेयर करो, जो चीजें बताई जा रही हैं आप उतना करो। आप अलग से बहुत चीजें अगर करने के लिए जाओगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। और जीएस के विषय में तो मैं कहूंगा जीएस आप छोड़ो मत। सर विक्रम जी, जो जैसे हमारे आपने एक्सप्लेन डॉक्टर अंकित है वो जीएस पूरा संभाल लेंगे सर। उन्होंने एमपी में संभाला है, बाकी सब में संभाला है, तो वो तो सर इसमें पार लगवा देंगे। हाँ डॉक्टर अंकित, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। नहीं नहीं, विक्रम जी का सपोर्ट रहेगा ही ऑब्वियसली। 4-5 जने और हैं जो 2023 और 2019 बैच के सिलेक्टेड हैं, तो दे आर हेल्पिंग अस आउट। तो एक कोलैबोरेटिव एफर्ट रहता है, इट्स नॉट अलोन एफर्ट। तो उन सबका भी एफर्ट रहता है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है उनका, तो वो भी जी। हमारे को इफेक्ट करता है। तो जैसे विक्रम जी आपने समझाया, मैं उससे एक चीज समझ में आया कि वो डेंटल के क्वेश्चन इजी लेवल पे रखते हैं, जिसकी वजह से सारा क्राउड जो होता है इक्विवेलेंट आ जाता है, और वो एज जो होती है वो एज जीएस से उठाता है बच्चा। तो ये बिल्कुल। है ना? तो जो आपने कहा, तो अब डेंटल सब्जेक्ट्स में कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमको करने चाहिए, क्योंकि डेंटल भी अपने आप में भी बहुत बड़ा है। यस सर। डेंटल में सर जो फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक, कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बड़े उनको प्रिय हैं, है ना, जैसे रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है, ओरल सर्जरी हो गई, और पेरियो से कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, कम्युनिटी से उनके क्वेश्चंस कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस रहते हैं, कभी कभार पीरो से पूछ लेते हैं। तो 4-5 तो हैं ही, बट मैं कहूंगा सर कि बेटर रहेगा अगर आप फाइनल ईयर के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप किसी को मत छोड़ो। वो आपका सबसे पहले कोई चीज प्रिपेयर करो तो आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करो। मतलब ओपैथ प्लस फाइनल ईयर, ये मेरे ख्याल से बेस्ट कॉम्बिनेशन ये रहेगा। सर, ये सर ओरल पैथ में भी सर मैं एक ऑब्जर्वेशन में बताऊंगा सर कि ओरल पैथ में इस टाइम के साथ साथ क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। वो आप किसी भी एग्जाम में जाइए तो वो आपको वहां नहीं लेके जाना चाह रहे। तो ओरल पैथ में भी क्वेश्चंस जो आपके पल्स से जो बड़े प्यारे से क्वेश्चंस बनते थे, है ना, वो विकहैम्स ट्रायड फॉर एग्जांपल, ऐसी चीजें जो होती है, ग्रीनस्पैन लीजन सिंड्रोम, आपसे वो वहीं रखना चाह रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है। तो आप ओरल पैथ को इंक्लूड करिए। ओरल मेडिसिन, बेसिकली ओरल मेडिसिन एंड ओरल पैथ, ओरल मेडिसिन का ही वो एक्सटेंशन है बेसिकली। तो आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स को आप स्ट्रांग रखिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा विक्रम जी, इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि पेशेंट आया, उसका बीपी हार्ट रेट इतना है, इस टाइप के क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं, मतलब नहीं सर, बहुत रेयरली अगर एक आध कभी पूछा हो, बट जहां तक मेरे ध्यान में है सर, वो आपको नहीं भेजना चाहते उस लेन में कि आप उस तरफ करिए। तो जैसे आपने कहा कि हम टेस्ट सीरीज फॉलो करें और पल्स करें, तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी चाहिए क्या हमें? सर मुझे लगता है अगर आप डेंटल मेडिकल की बात करें सर, तो आप पल्स है, पल्स की सिनॉप्सिस है, पल्स के एक्सप्लेनेशंस हैं पीछे, एंड टेस्ट सीरीज है। अगर आपको कोई कंसेप्चुअल इशू है, जिस तरह के क्वेश्चंस वो पूछते हैं, आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में वो नहीं घुसा के लेके जाते, बट स्टिल अगर आप फिर भी अगर आप चाहते हो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, तो आप बुक रेफर कर सकते हो। बट उसको ये नहीं कि आप पल सॉल्व कर रहे हो और बगल में बुक लेके बैठे ही बैठे हो, वो आप मत करिएगा। वो आपका बहुत टाइम ले लेगा, फिर आप वो नीट वाले उसमें चले जाओगे, इस नहीं, एग्जाम मैंने से। देखा है कुछ बच्चे हैं जो मतलब बाउचर और ये सब उठा लेते हैं कि सर हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाए। तो वही मैं कहता हूं, उनको डिफरेंस इज देयर कि आप रिट्रोग्रेड पढ़ाई करिए, जहां क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे, देयर यू गो टू अपना कंसेप्ट रेडी कर लो, यूट्यूब देख लो उसका, रादर यस। देन क्लासेस ले रहे हो। अभी कुछ बच्चे हैं, दे वांट वीडियो लेक्चर्स, वो राइट, वीडियो राइट। लेक्चर्स ले रहे हैं। नहीं तो सर मैं ये बस आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्या किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में पीएचडी कर लेना उस एग्जाम के लिए, रादर देन यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये वाली एक फिनोमेना अपना करके, और इतना टाइम नहीं है कि वीडियो लेक्चर देखें, लाइक बिकॉज लाइक दिस इज वेरी, 5 से 6 महीने में एग्जाम करा देंगे वो। आपको क्या लगता है सर? 100% सर। आप मान के चलिए जून तक, अगर बहुत लेट हुआ, जून तक वो आपके रिटन एग्जाम लेके शायद आपको प्रीलिम्स का रिजल्ट भी देते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज का, क्वाइट पॉसिबल। तो आपके पास उतना समय नहीं है। आप अगर घुसना चाहो, कोई अंत नहीं है, लेकिन आप घुसो मत उस तरफ। आप जनरल राइट, राइट। चीजें पढ़ो, सिंपल चीजें पढ़िए, खूब पढ़िए, सारे सब्जेक्ट्स की तरफ आप ध्यान दीजिए, और समय निकाल के जीएस के लिए पढ़िए। क्योंकि एक तो ये है कि जीएस बहुत समय से 10th के बाद बच्चों ने छुआ नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को वहां पे रटना नहीं है, थोड़ा एसिमिलेशन लगता है। आप कुछ पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आपको थोड़ा उसमें डेंटल के कंपैरेटिवली आपको एक दो फैक्ट्स बड़े सिंपल होते हैं वो, बट वो आपके दिमाग में ठहरे, इसके लिए आपको समय तो देना होगा। आप सोचोगे अगर लास्ट के 2-3 मंथ्स में मैं लेके कोई मुझे पीडीएफ चिपका दिया, मैं लाइन बाय लाइन रट रहा हूँ, वो हेल्प नहीं करेगा। आप एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे, तो वो फायदा नहीं है। सो सर बेटर है।
ये हाँ। चीज विक्रम जी जो आपने कही ना, ये चीज सिमिलर एमपीपीएससी के कुछ बच्चों के साथ हुआ। वो जी। रेगुलर नहीं पढ़ रहे थे और लास्ट में आके कि सर पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, और फिर वो इवेंचुअली यही हुआ कि उनका मतलब आउटपुट उतना अच्छा नहीं आया। जी। डॉक्टर विक्रम मैं जी ये कह रहा था इससे हम वैसे भी क्यूरेटेड नोट्स रखे हैं अपने टेस्ट सीरीज में, जो जी बच्चों को जी। मिलेगा, जी। जो डॉक्टर विक्रम जी ने भी उसे हाँ कहा है, सारी चीजें कहा है, वो एकदम थ्रू द पॉइंट है। वरना ऐसे यस। मटेरियल पोथा रखने के लिए तो हम बहुत कुछ रख सकते थे, बट लाइक आपने ही कहा था, क्योंकि आप ही हमारे सारे मटेरियल एक्सपर्ट हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं कह रहा था विक्रम जी, डिफरेंट स्टेट्स के भी पीवाईक्यूज होते हैं। तो हम लोगों ने अपने ऐप में वो सारे सारे स्टेट, केरला हो, तमिलनाडु हो, और आपका राजस्थान, हरियाणा, बिहार का टेस्ट पेपर, एमपी के पेपर, वो सब अरेंज किए। क्या उन पेपर्स की भी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए? यस सर। वो करिए, जो जैसे अगर आप ठीक ठाक समय, अगर आपने अगर ये डिसाइड किया मुझे एग्जाम देना है, पहले तो ये है कि आप 8-10 घंटे थोड़ा निकालो समय थोड़ा। तो आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई पल्स वगैरह जो चीजें हैं वो तो पढ़िए, प्लस स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस मैं ये नहीं कह सकता वो डायरेक्ट आ जाएंगे वहां से, बट अगर आप देखो तो जो यूपी पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या दूसरे स्टेट के क्वेश्चंस हैं, समवेयर जो है ना उनका पैटर्न, अगर आप हरियाणा को एक्सक्लूड कर दो, आपको सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न रहेगा। तो अगर आपके पास, अगर आप समय दे पाओ, आप कर लो। टेस्ट सीरीज में वैसे भी चीजें कवर होने वाली हैं, वो आप जैसे चाहो ना चाहो वो आपको टेस्ट सीरीज में कवर करा दिया जाएगा। लेकिन अगर समय है तो आप वो भी करो, बट अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए वो दिमाग में लेके बैठना नहीं, अरे मैंने तो ओडिशा का सॉल्व नहीं किया, उसका सॉल्व नहीं किया, नहीं वो नहीं। पल्स को एक फंडामेंटल बुक बनाइए आप अच्छे से, एंड उसको पढ़िए, टेस्ट सीरीज को फॉलो करिए। जीएस के लिए जैसे गाइड किया जा रहा है, आप जीएस के लिए उस हिसाब से समय निकाल के पढ़िए। विक्रम जी जैसे अभी आपने जीएस के बारे में कहा, और मेरे को पता चला है कि आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया जीएस का 2019-2023 पेपर का। तो क्या उस पे आप बता सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स पे हमको स्ट्रेस करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा है ना? यस सर। बेसिकली सर, जो यूपीपीएससी है उसके उसके जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं आपसे नेशनल चीजों के बारे में, वो स्टेट स्पेसिफिक बहुत कम पूछते हैं। तो आपको बेसिकली नेशनल लेवल की चीजें पढ़नी है, बट उसमें ऐसा नहीं कि आपको यूपीएससी के लेवल पे चले जाना है, आपको ओवरऑल चीजें पढ़नी है। और मैंने उसमें कुछ जो उनके हॉटस्पॉट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स अगर आप देखो तो अगर आप पूरे जीएस को डिवाइड करो तो आपको जीएस में पहले बात कर रहा हूँ, जो जो कि आपके 30 में से 20-22 क्वेश्चन आपके जीएस से होने वाले हैं। तो अगर आप जीएस की बात करो तो मैंने 7 अलग अलग उसमें कैटेगराइज किया है कि वो कहां कहां से क्वेश्चन पिक करते हैं इन डिटेल, जो है वो चीजें आपको शेयर की जाएंगी। आप अगर देखना चाहो तो ये एक पूरी लिस्ट है जिसमें पूरा वो भरा हुआ है, और भी पेपर्स हैं। सो वो सारी आपको बता दी जाएंगी। मैं अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो अगर हिस्ट्री का पार्ट है तो हिस्ट्री में वो मॉडर्न हिस्ट्री को पिक करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री इन द सेंस जो 200 साल की हमारी फ्रीडम स्ट्रगल रही है उसको वो पिक करते हैं। वहां पे जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, जैसे गांधी जी हैं, बोस हैं, अंबेडकर जी हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, ऐसे लोग हैं, इनके जो स्लोगन्स हैं, इन्होंने जो है कौन सी बुक लिखी है, या फिर कोई हिस्टोरिकल इवेंट जो हमारे 200 साल के फ्रीडम स्ट्रगल में, जैसे कुछ मूवमेंट्स हुए हैं। 1920 के अराउंड जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, 1930 के अराउंड सिविल डिसोबीडियंस हुआ, 40 में भारत छोड़ो हुआ, क्विट इंडिया, ऐसे कुछ चौरी चौरा इंसिडेंट हुए थे। बंगाल का डिवीजन कब हुआ, 1905 के अराउंड। ये कुछ हिस्टोरिकल ये है इंपॉर्टेंट्स है, फ्लैश पॉइंट्स हैं जिन्होंने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को डिसाइड किया है। तो आपको गांधी जी कब वहां से रिटर्न हुए थे, आपको ये चीजें, अगर आप सोचो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। तो आप ये करिए कि इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखिए, और उसके लिए आप गूगल भी इस्तेमाल कर सकते हो, और बुक्स हैं उसके लिए, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मुझे जीएस के लिए एक बड़ी अच्छी बुक लगती है, वो है ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जो हम लोग बच्चों को अलग से लिख के भी दे देंगे कि कौन सी है वो। अगर आप ब्रीफ हाँ सर, आप जी चलिए चलिए चलिए। जी सर, तो अगर आप जीएस के बारे में बात करें, कई बच्चों को होता है क्या कि यूट्यूब से पढ़ सकते हैं या गूगल से नोट्स बना सकते हैं, कर सकते हो आप, वो भी बिल्कुल वैलिड है। आप टॉपिक का नाम लिखो, जैसे गूगल पे फॉर एग्जांपल 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन किंग्स एंड रूलर्स, ऐसा करके, या फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ऐसे अगर आप डालोगे तो आपको चैट जीपीटी भी चीजें बता देगा। आप यूट्यूब पे डाल दोगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको 2-3 घंटे का एक पूरा आपको कोई वीडियो मिल जाएगा। बट बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, मुझे बुक के सामने मुझे पढ़ना है। तो ना उस केस में क्या होता है कि आप फिर एक बुक चाहते हो तो उसमें आप ल्यूसेंट पब्लिकेशन को आप रेफर कर सकते हो, जहां पे कि वो सिलसिलेवार ढंग से आपको चीजें बता देते हैं, एक फ्लो में चीजें चलती है। बुक के सर साथ एक मेरा एक एडवांटेज सवाल क्या। है, सर मेरा एक सवाल है, जैसे घटना चक्र करके भी एक बुक आती है, बट उसमें बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कौन सा लूसेंट पब्लिकेशन आप कह रहे हैं। सर वो थोड़ा सा वो भी गाइड कर दीजिए। लूसेंट वो का टेंशन ना करें, हम बच्चों को प्रोवाइड करा देंगे, उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, और कहाँ अमेज़न में कहाँ मिलेगी वो भी हम बता देंगे। बस यही यस सर, सवाल मैं यस सर, इसलिए कर रहा था डॉक्टर अंकित, आप सब तो प्रोवाइड करा ही देंगे, बस मैं यही बच्चों से कह रहा था, उन्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, यस यस। सर आप कंटिन्यू करिए। तो सर प्लीज ये है हिस्ट्री वैसे हो गई, फिर पॉलिटी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो पूछते हैं, कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं,
फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऐसी चीजें पूछते हैं। फिर अभी रिसेंटली आर्टिकल 370 पे इंडिया में एक बड़ी चीज हुई है, तो आर्टिकल 370 कौन से स्टेट से रिलेटेड था, आपसे बहुत बेसिक चीजें पूछते हैं। आपसे नहीं पूछते फंडामेंटल राइट्स के मुझे नाम बता दो, आप कौन कौन सा है, नहीं वो नहीं पूछेंगे। कौन कौन से आर्टिकल से आर्टिकल तक, मतलब अगर आप ऐसे सोचो तो हर एक सब्जेक्ट का, अगर आप चाहो, जो 6-7 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, इसके 3-3 4-4 पेज के पीडीएफ आपको दिए जा सकते हैं। लेकिन एक फ्लो में उसको समझने के लिए ना, आप उसको लास्ट के 2 महीने के लिए मत रखिएगा। ये पॉइंट है मेरा सारा कहने का। आप उसको पहले से पढ़िए, बुक से पढ़ लीजिए, इससे यूट्यूब से देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, जो टेस्ट सीरीज के जो मटेरियल है, जो अपना यहाँ से मिल रहा है अपने एक्सपर्ट गाइडेंस से, वो मटेरियल देखिए। बट उसपे टाइम दीजिए, उसको छोड़िए मत कि हाँ ये तो सर करा ही देंगे, ये यूट्यूब पे देख ही लेंगे। डोंट गो फॉर इट। तो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, एग्रीकल्चर से कुछ चीजें पूछते हैं वो, रबी फसल कौन सी होती है, खरीफ कौन सी होती है, और 2-3 किस्में पूछ लेंगे आपसे, राइस के कौन से 2-3 वैरायटी के बारे में बताइए। फिर यूपी स्पेसिफिक कुछ चीजें पूछेंगे आपसे कि यूपी में कितने मंडल हैं, कितने एग्रो इकोनॉमिक जोन्स हैं, ये पूछ लेंगे। फिर आपका यूपी में टूरिस्ट प्लेसेस कौन कौन से हैं, यूपी मतलब आपको आपको अपने स्टेट के बारे में, जहाँ पे आप अभी ज्वाइन कर जैसे रहे हैं, कुंभ हुआ है उसके बारे में पूछ सकते हैं। यस सर, वो कुंभ के बारे में आपसे पूछ लेंगे कि वो जो माघी पूर्णिमा की कौन सी वो डेट होती है जब आपको तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। ये क्वेश्चंस रेज किया हुआ है सर, आपने बहुत वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल टाइमली पूछा। तो ऐसी चीजें वो पूछते हैं आपसे, यूपी स्पेसिफिक पूछेंगे। साइंस उनके बड़े सिंपल होते हैं। साइंस में वो विटामिन, प्रोटीन, वैक्सीन, इन्फेक्शियस डिजीज और उसके कॉजेटिव एजेंट्स, इसमें वो वैक्सीन जो आप कम्युनिटी में पढ़ते हो, थोड़ा बहुत मतलब जो भी साइंस से रिलेटेड उतना ही चलता है उनका, बहुत ज्यादा वो आपसे साइंस में क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। इसके अलावा करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। करंट अफेयर के लिए मैं आपको बताऊं, एक प्रतियोगिता दर्पण एक बुकलेट आती है, वो एनुअली जो है वो हर 6 महीने पे 6 महीने की वो निकालते हैं बुकलेट, जिसमें वो सारे इवेंट्स होते हैं। वो एक कंप्लीट पैकेज है वो। आप 6 महीने के वो 2 वॉल्यूम ले लो, 1 साल का, लेकिन आपको उसमें कुछ हॉट टॉपिक्स हैं, वो सारे क्वेश्चंस, मतलब पता चला आपने इधर से उधर पढ़ दिया नहीं, आपको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई नहीं करना है, आपको डेंटल के लिए करना है, तो आपको बहुत उसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि अवार्ड्स, नोबेल प्राइज किसको मिला, स्पोर्ट्स में अभी रिसेंटली किसको मिला, क्रिकेट में अभी वर्ल्ड कप जो हुआ वुमेन का किसने जीता, उसमें फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन थी, अपने इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में रिसेंटली कौन अपने चीफ गेस्ट थे, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फिर इसके अलावा कोई मूवी ऐसी बनी हो हिस्टोरिक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी छावा एक मूवी आई थी, तो वो उसमें कौन से रूलर के बारे में था, तो औरंगजेब के बारे में, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं वो। इसके अलावा कुंभ तो है ही यूपी के स्टेट के हिसाब से। इसके अलावा यूपी स्टेट गवर्नमेंट कुछ जो उनके ये होते हैं बजट, एनुअल बजट जो है वो कितने का है, और उसमें हेल्थ सेक्टर में क्या उन्होंने कोई नई स्कीम जारी की है। तो ये चीजें हैं कुछ ऐसे हॉट, मतलब 10 चीजें ऐसे हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप, अब ये मैं बुक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप गूगल करने जाओगे ना, तो आप एक क्वेश्चन ढूंढने जाते हो, फिर आप वो टैब्स खुलते रहते हैं 4-5-6, और फिर आप किसी अलग ही जोन में चले जाते हो। तो बेटर है कि आप अगर बुक को पढ़ो, एक बार पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, सॉल्व करो, तो आपको क्या होता है कि वो रिवीजन में बहुत अच्छा रहता है। आपको इधर उधर फिर मोबाइल खोल के टाइम पास करने में करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं। ज्योग्राफी का भी पार्ट है, और जैसे मैंने बताया 6-7 चीजें हैं जो जिसके डिटेल्स हम आपको दे देंगे। हम आपको रिटर्न जो कहाँ से पढ़ना है, मैंने जैसे बताया ल्यूसेंट की, सर जो पूछ रहे थे, एक ग्रीन कलर की, पहले तो येलो बुकलेट होती थी सर, येलो कलर की, अब एक ग्रीन सा मैंने देखा, मैंने इसके लिए देखा था, तो अमेजोन पे मुझे ग्रीन कलर का वो दिखा, तो आप वो वाला ले सकते हो। येलो वाला भी अच्छा है क्योंकि जीएस चेंज नहीं होता, स्टैटिक है, तो इट विल नॉट चेंज, तो आप वो भी ले सकते हो। प्लस प्रतियोगिता दर्पण आप अपने आसपास किसी भी दुकान पे चले जाओ, प्रतियोगिता दर्पण मतलब वो आपको कहीं भी मिल जाएगी। तो करंट अफेयर्स वहां से हो जाएगा, जीएस आपका ल्यूसेंट से हो जाएगा, बाकी कोच जो टेस्ट सीरीज है इसमें क्वेश्चंस आपके हो ही रहे हैं, तो आप कवर कर लोगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कवर्ड, बस आपको मेहनत करने की देर है। राइट सर जैसे आपने टेस्ट सीरीज का कहा, तो कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए बच्चे को? सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एग्जाम प्रिपेयर करते हो, तो हर वीक अगर आप एक टेस्ट दे सको, अभी से लेके एग्जाम तक, एग्जाम के 1 महीने पहले तक आप जितना हो सके, जितने भी चैप्टर वाइज जो भी, जैसे जो मॉड्यूल हमारा बना हुआ है, उसमें आप हर वीक के अराउंड आपके क्वेश्चन ये रहेंगे, वीक या 2 वीक्स, इस पे जब आप पढ़ रहे हो, बेसिकली आप पहले तो प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर तुरंत तुरंत से टेस्ट ले लेंगे तो वो सही नहीं रहेगा। थोड़ा थोड़ा गैप पे 7 डेज 10 डेज पे अगर आपको मॉक दिए जा रहे हैं, वो करिए। फिर एग्जाम के 1 महीने पहले आप एनीवेज नई चीजें पढ़ के आप क्वालिफाई नहीं करने वाले हो, तो बेसिकली आपको लास्ट मंथ में जो मॉक क्वेश्चंस, मॉक पेपर्स आपको धड़ल्ले से दिए जाएंगे, मतलब आपको फटाफट क्वेश्चंस, आपको मॉक टेस्ट थोड़े बढ़ जाएंगे, तो बेसिकली वो 1 मंथ से पहले आपको प्रिपेयर हो जाना है। तो वही चीज है। तो आप शुरुआत में, अब डिपेंड करता है सर वो डेट वगैरह का क्या पड़ता है एग्जाम का, बट ये रहेगा अगर टेस्ट सीरीज अर्ली शुरू हो रही है तो टिल द एग्जाम से 1 महीने पहले तक आप ऑलमोस्ट हर सप्ताह 10 दिन पे एक मॉक दे दो आप। और इसी बात में नित्यम सर आप कुछ कहते हैं टेस्ट सीरीज का हमेशा, कि टेस्ट सीरीज का वही मतलब है
हाँ, डॉक्टर साहब एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि मैं हमेशा ये बात बोलता आया हूँ, टेस्ट सीरीज़ वही जॉइन करनी चाहिए जहाँ बच्चे मैक्सिमम हों। अब 10-15 बच्चों की टेस्ट सीरीज़ जॉइन करने से कोई मतलब नहीं, वहाँ आप रैंक 1 भी ला रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता सर। डॉक्टर नितिन अगर आप ये बोलेंगे तो बहुत बाहर कला हो जाता है। लोग और मतलब लाइक राइट, राइट और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टेस्ट सीरीज़ में 900 प्लस कैंडिडेट्स हैव बीन एनरोल्ड टिल नाउ। तो काफ़ी अच्छा एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको पुश करने का पूरा-पूरा मौका यहाँ पर मिलने वाला है। सर बेस्ट प्लेटफॉर्म सर। राइट, सर राइट। एक चीज मैं ये पूछ रहा था कि एग्जाम में 150 क्वेश्चंस हैं, तो कितने अटेम्प्ट रखने चाहिए, गेस मार्किंग कितनी करनी चाहिए, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सर तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 2 क्वेश्चन के बारे में श्योर हो, 2 ऑप्शन के बारे में श्योर हो, तो आप यू गो फॉर इट। बट एट द सेम टाइम क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है ना? तो आपको ये भी बैरियर देखना है कि मुझे 95 प्लस करना है फाइनल मेरिट के लिए। तो अगर आप बिल्कुल पता चला आप 120 क्वेश्चंस लगा रहे हो और उसमें अगर आपका एक्यूरेसी का इश्यू हो गया, तो फिर आप मतलब आप सेफ जोन में नहीं रहोगे। तो बेटर है मेरे हिसाब से, अगर 150 क्वेश्चंस हैं, आप कोशिश करो 130 अबव लगाओ। उसके लिए वो आप तभी लगा पाओगे जब आप दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ के जाओगे। तब आपके पास वो जो ऑप्शंस जो हम लोग एलिमिनेट करते हैं, वो तभी हो पाएगा। अगर आप वो आपका ब्रॉड अगर बेस अगर आपने पूरा प्रिपेयर फैला के नहीं पढ़ा है, तो फिर वो 130 तक आप नहीं पहुंच पाओगे। कई स्टूडेंट्स होंगे जो 140 भी करेंगे क्योंकि वो पढ़ के जा रहे हैं अच्छे से। तो ये चीज है 130 एंड अबव सर, 130 मिनिमम। विक्रम जी, बहुत बच्चे जो हैं, अभी एग्जाम हुआ नहीं है, जैसे हम मेडिकल कॉलेज पहुंचते नहीं उससे पहले रैगिंग का डर सताता ना, तो बच्चे अभी पूछने लग रहे हैं कि सर इंटरव्यू में कैसा होता है। तो मैं चाहता हूँ एक छोटा सा एक्सपीरियंस आप बता दें। हाँ, जरूर सर। छोटा-सा सर इन ब्रीफ वेरी, वेरी ब्रीफ आप वेरी बता ब्रीफ। बिल्कुल सर, इंटरव्यू के लिए वो डेज सेलेक्ट करते हैं आपको, फिर आपको बुलाते हैं, वो उस बैचेस में होते हैं। फिर आपको बड़े कायदे से आपको प्रयागराज में जो यूपीपीएससी का जो ऑफिस है वहां पे बुलाया जाता है। और फिर आप एक बड़ा सा हॉल होता है, मतलब 4-5 अलग अलग ये होती हैं, टीम्स होती हैं, मतलब आप यमुना कह लो सरस्वती, जी यमुना जी। सरस्वती ब्लॉक्स रहते हैं। हाँ, ये बिल्डिंग के नाम है सर। और उसमें ऐसा होता है कि चैम्बर, एक एक ब्लॉक में 5-5 6-6 चैम्बर्स होते हैं। तो जो यूपीपीएससी के जो चेयरमैन है, वो एक ब्लॉक में वो बैठेंगे अपनी टीम के साथ। तो हर एक टीम में 6-7 लोग होंगे। तो एक एक जो यूपीपीएससी के जो मेंबर्स हैं, वो एक एक टीम को हेड करते हैं। तो एवरीडे वो 5-6 टीम होती है, और उसमें आप घुसोगे तो आपको एक हाफ सेमी सर्कुलर टेबल दिखेगा, जिसमें आपको 5 से 6 लोग बैठे हुए दिखेंगे। और वो हर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जो बीच में होते हैं वो बेसिकली यूपीपीएससी के जो मेंबर बोर्ड मेंबर हैं, वो होते हैं। और बाकी डेंटल के स्पेशलिस्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो वहां पे 3-4 लोग होंगे, वो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन है वो। कोई आपका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन कर रहे होंगे, कोई आपकी एंजाइटी को चेक कर रहे हैं, कोई आप कैसे बात कर रहे हो उस पे उस वो चीज को आपके जज कर रहे होंगे। ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये एक सर्विस है जो आपको सीएचसी लेवल पे करना है, ये सुपर स्पेशलिटी सर्विस नहीं है। तो आप वहां पे अगर बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, भाषा में अगर आप हिंदी यूपी में आप हो तो आपको अच्छी हिंदी बोलनी है, वैसे शब्द यूज करिए जो कॉमन हो, मतलब आप उनको भी समझा पा रहे हो, और अगर वही लैंग्वेज अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को बोलोगे तो वो भी समझ जाए। तो आपको बहुत टेक्निकल नहीं होना है इन सब मतलब उनको ऐसा प्रतीत ना हो कि ये बच्चा बहुत ज्यादा अर्बन है, ये पता नहीं वहां कैसे रहेगा, है ना? तो ये आपको थोड़ा समझना होगा। सर तो मेरा वही सर, अब आप यहाँ मेरा यहाँ एक पर मैं एक सवाल है। चीज़ ऐड जी यहाँ पर पूछिए मैं पूछिए। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इंटरव्यू रिगार्डिंग के लिए। आप बिल्कुल भी बेफ़िक्र रहिए, सिलेक्शन के बाद हम लोग पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी करेंगे, जिसमें आपको पूरी-पूरी हेल्प रहेगी। डॉक्टर विक्रम सर भी रहेंगे उसमें मॉक इंटरव्यूज़ में, तो उसमें यस आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। हाँ, यस इंटरव्यूज वी विल देखिए जो टेस्ट सीरीज है वो आपके रिटन टेस्ट तक वैलिड है, और जो भी इंटरव्यूज होंगे वी विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। उसके सारी चीजें डिटेल्स हम बाद में बताएंगे। पर देखिए एक सवाल हमेशा ये रहता है कि आप इंटरव्यू तक पहले पहुंचिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर। एक बहुत बड़ा सवाल है, बच्चे पूछते हैं इंटरव्यू में कि डेंटल के एस्पेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, आउट ऑफ डेंटल क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सर एक और सवाल बहुत बहुत रोचक सवाल होता है कि आप ये पीएससी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपकी क्लिनिक इतनी अच्छी चल रही है या फिर आप अपने जिंदगी में ऑलरेडी एक्सेल कर रहे हैं, तो आपको ये जॉब की जरूरत क्यों है। और सर कुछ ऐसे-ऐसे बेसिक सवाल हैं, अगर आप उसको लेना चाहें, और जो डिफरेंस है डेंटल के क्वेश्चंस या फिर आउट ऑफ डेंटल, कितने क्वेश्चन होते हैं, कैसे होते हैं? सर थोड़ा-सा अगर ब्रेक करके आप थोड़ा-सा बता दें तो। जरूर सर, मैं इस चीज को बताना चाहूंगा। देखिए सर, मैं बताऊं, इंटरव्यू जो है वो आपसे, जो आपका डेंटल नॉलेज है ना, बेसिकली आपसे वो रिटन में टेस्ट हो गया है। तो जो डेंटल के स्पेशलिस्ट हैं, वो ऑब्वियसली आपसे कुछ क्वेश्चंस तो जरूर पूछेंगे। फॉर एग्जांपल, वो इतने सिंपल क्वेश्चंस होते हैं कि आप जो है ब्रशिंग टेक्निक कौन सी एडवाइस करते हो, या आप जो है फ्लोराइड अप्लाई करते हो क्या, कितने एज तक करते हो। वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस, जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। डेंटल के स्पेशलिस्ट आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। जो मेन उनका टेम्परामेंट, ये इंटरव्यू बेसिकली वो आपका टेम्परामेंट चेक करना चाह रहे हैं, और आप कितने इजीली आप उस जगह पे ज्वाइन करके सर्व कर पाओगे, वो वहां पे टेस्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाएगा कि आप वहां पे जाओगे तो क्या आपको लगता है कि आप एडजस्ट कर पाओगे। तो इस सवाल का जो जवाब है ना, वो आप, मुझे लगता है
हर इंसान के पास एक जवाब आपको अपने पॉजिटिव साइड से आपको पिक करना होगा। मैं सर आपको आपने एक क्या एग्जांपल जवाब देता दिया था? सर आपने क्या हूँ। सर जवाब दिया? मेरे से भी सवाल हुआ था। मैं बेसिकली सर मैं रूरल बैकग्राउंड है मेरा। मेरी 10th जो है बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल में हुई थी, जहाँ पे बाउंड्री वॉल भी नहीं होती थी। और उसके बाद फिर मैंने क्वालिफाई किया, तो मैं फिर बाहर आया। तो जब मैंने ये क्वेश्चन सोचा था, तो मेरे अंदर से ये आवाज आई थी कि मैं गांव में रहा हूँ और वहां पे चीजें मुश्किल हैं, है ना। और डॉक्टर्स एक तो अवेलेबल नहीं होते, अगर होते हैं तो झिझकते हैं, और वो भाषा नहीं होती, डॉक्टर्स बाहर से पढ़ के आते हैं, शायद वो उस तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होती हैं। तो सबसे पहले तो यही चीज होती है कि आप उस बैकग्राउंड में जाके अपने आप को एक पेशेंट के तौर पे सोचिए। फिर आप सोचिए कि क्या डिमांड, आप उस डॉक्टर से क्या डिमांड कर रहे हो। तो आपसे जब ये पूछा जाए कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि सर, मुझे इस बैकग्राउंड में सर्व करना पसंद है, और मैं ये इन्फॉर्म्ड चॉइस मेरी है। ऐसा नहीं कि सर मैंने सुना है, क्योंकि मैंने ये जिया है, मैंने अपनी लाइफ में मैंने ये चीज जी है। इसीलिए एक और आंसर इसका हो सकता है सर, आप अगर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी चीजें, ऐसे न्यूज आपको मिल जाते हैं कि इलाज के अभाव में इन्होंने दम तोड़ दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो अगर ये सब चीजें आपको तकलीफ देती हैं, तो उसका सोल्यूशन सिर्फ तकलीफ लेने से नहीं है। जब तक आप उसके पार्ट ना बन जाओ, उस सिस्टम के पार्ट ना बन जाओ, जहां पे आप इन सब चीजों में कंट्रीब्यूट कर सकते हो सिस्टम को पॉजिटिवली, सो दैट अगर आपका थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन अगर इस सिस्टम को बेटर करने में हो सकता है, दैट्स तो वो आप इस सर्विस में आके ही कर सकते हो। तो दैट शुड बी द थिंग, कि अगर आप नहीं भी रूरल बैकग्राउंड से हो, बट आप अपने आसपास की चीजों को देख रहे हो, तो आपको लगता है कि मुझे इस चीज को बेटर करना है, मुझे सिस्टम का पार्ट बन के इसको सर्व करना है। दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग गोइंग फॉर दिस जॉब। इस तरह नितिन से सर, इंटरव्यू काफी के बाद लोगों में के होती डाउट रहेंगी। है, इंटरव्यू के नितिन सर बाद में काफी लोगों के डाउट है, राइट उन राइट लोगों बस के। कुछ क्वेश्चंस और हैं। नहीं नहीं, अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं, लाइक सर, ये मेडिकल पे कितना फोकस करना है हमें, और पहले मुझे सर आप ये बताइए कि मेडिकल सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है या फिर कितना उस पे करना है। सर अगर मैं कहूं तो मेडिकल क्वेश्चंस पे फोकस करना है। मेडिकल क्वेश्चंस पे फोकस करने का मतलब ये नहीं होगा कि आप वो नीट और एम्स के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाओ। वो मत करिए कि उनके क्वेश्चन बैंक खोल के बैठ गए, नहीं, वो क्वेश्चंस मत करिए। जो साइनॉप्सिस में पल्स के, या जो उनके क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं बार बार पुरानी पल्स का जिक्र कर रहा हूँ, या नए पल्स में भी जो पुराने के क्वेश्चंस हैं, जो आप मान के चलिए 15-20 साल पहले जो बेसिक क्वेश्चंस है, फंडामेंटल क्वेश्चंस, आप उसको सॉल्व करो। आप बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करो। फिर चाहे वो सर्जरी का हो, फिर वो चाहे मेडिसिन का हो, मेडिसिन के क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, सर्जरी के बहुत बेसिक क्वेश्चंस, वुंड हीलिंग, अल्सर, ऐसी चीजों से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। माइक्रो के वो आपसे कुछ बेसिक बहुत कॉमन बैक्टीरियोलॉजी में जाएंगे, कॉजेटिव एजेंट्स में, या स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन में चले जाएंगे। आपसे पैथोलॉजी में जो हम पढ़ते हैं, सबसे जो फंडामेंटल चीजें पैथोलॉजी में पढ़ते हैं, केशियस नेक्रोसिस किस में होता है, लिक्विफेक्शन वाले, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। वो कभी भी आपको एक स्लाइड दे के नहीं पूछेंगे कि अब बताओ क्या करना है। वो उधर नहीं अगर सर जाएंगे। कोई कठिन क्वेश्चन भी होगा तो वो तो किसी को भी नहीं आएगा सर। इक्का दुक्का अगर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं तो देखिए, यस मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा, अगर मेडिकल से बहुत टफ क्वेश्चन आता है और अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो हमेशा ये समझिए कि सामने और भी जो बैठे हैं वो भी नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो डिफरेंस यस ये है। जी। राइट और राइट। सर मेरा एक तो सवाल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर क्वेश्चंस को छोड़ना भी तो सीखना चाहिए बच्चों को। यस सर, अगर क्वेश्चन बिल्कुल, एक तो वैसे क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा, या कुछ नई इंफॉर्मेशन आ गई। जब मुझे याद है एक स्मार्ट मटेरियल्स का क्वेश्चन आया था बहुत पहले एम्स के क्वेश्चन पे। वो फर्स्ट टाइम जब पहली बार लोगों ने एग्जाम दिया था, तो वो उनको नहीं पता चला था। तो आप ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्का भी मत लगाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन अगर रहते हैं तो आप उसको लेट इट गो। बट अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन विदाउट सीइंग द ऑप्शन, अगर आप क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा है कि अरे हाँ, ये हो सकता है, फ्लोराइड रिलीज, या मान लो ऐसा कि केमिकली कौन सा सीमेंट जो है बॉन्ड करता है टूथ को, अगर आप दो तक पहुंच जा रहे हो, जीआईसी है या पॉलीकार्ब है, ऐसा ऐसे तो है, कंपोजिट तो नहीं है ये, वैसा तो नहीं है, अमलगम तो नहीं है, तब आप जब ऑप्शन पे आते हो ना, तब आप वहां पे आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहले क्वेश्चन को देख लो कि आप इस क्वेश्चन को कभी आपने पढ़ा है या इसके बारे में जानकारी है। ऑप्शंस पे उसके बाद जाओ, आपको अपने आप वो ऑप्शन दिख जाएगा, पहला अरे ये है, हटाओ, ऐसे हो जाता है। तो वो एलिमिनेशन का तरीका है। पहले क्वेश्चन को आप देख लो कि आपने ये कभी एड्रेस किया है कि नहीं। राइट सर, अंकित सर, नाउ हम Q&A खोल सकते हैं। मोहित सर, डॉक्टर डॉक्टर अंकित एंड डॉक्टर नितिन, दिस इज डॉक्टर मोहित एंड वी आर गोइंग टू ओपन द Q&A। बट एक बात मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि सारी चीजें आपको हम लोग दे देंगे जब भी आपको ऐड किया जाएगा। आपके एडमिन जैसे जैसे ऐड करेंगे कोर्स में, तो आप उसकी चिंता मत करिए। जो भी डाउट है, अगर एक लाइक आई एम अगेन सेइंग इट, don't make it impossible for us to start this Q&A section. Don't make it rough. If you are asking, just raise your hand. Our admins will ask you to unmute and ask your question. और अपना क्वेश्चन एक गो में बात पूछ लीजिएगा, चैट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अदर बहुत सारे कैंडिडेट भी हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी दीजिएगा। तो हम Q&A सेक्शन खोल रहे हैं, आप बस अपने आप को अनम्यूट करिए और अपना सवाल पूछिए। नहीं और जो नहीं भी अनम्यूट करके सवाल चंदन पूछ रहा है उसकी नहीं नहीं, चंदन एक मिनट जवाब सेनगुप्ता, देंगे।
जस्ट वेट। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा बोलना कि पहले अपना हैंड रेज़ करें और हाँ। डॉक्टर अंकित सर को एड्रेस करेंगे। उसके हाँ, बाद जब डॉक्टर हम अंकित आप बोलेंगे बोलेंगे? हाँ, हाँ। जब आप बोलेंगे, जब अपने चंदन आप को अनम्यूट करेगा और अपना क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नाम चंदन आने पे ही आप सेनगुप्ता अपने आप को अनम्यूट करिएगा। चलिए पूछिए, डॉक्टर चंदा। चंदन सेनगुप्ता डॉक्टर सीडीआर अरविंद अरविंद एंड सुमन सीडीआर अरविंद एंड सुमन आप पूछ सकते हैं। Hi, sir. Good evening. Actually, this is Dr. Vaishali. I'm sorry, this is my father's profile. So, sir, I just have one question. But approximately exam का date कब तक है tentative? एक एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट डेट कब? सर मैम देखिए वो एग्जाम की डेट जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके गवर्नमेंट के अपने वो होते हैं, तो आप उस पे आप ये एक टाइमलाइन मान के चलिए आप कि आपको मई जून बहुत अगर देरी हुई तो मई जून तक वो आपको एग्जाम ले लेंगे आपका। Okay, understood. Thank you. ओप्पो डॉक्टर सीपीएच प्लीज अनम्यूट एंड आस्क द क्वेश्चन। Yes, sir. Sir, my question is कि सर मैंने जो यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कराया था सर वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या मैं फॉर्म फिल कर सकती हूँ सर? मतलब 5 साल का होता है, मैंने केजीएमयू से 2020 में पास आउट किया है सर, तो 5 इयर्स एक्सपायर हो गया है। मैंने अभी रिन्यू नहीं कराया लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर है तो फॉर्म देखिए डॉक्टर रिन्यू ऑनलाइन हो जाता है, आप बस यूपीपीएससी की साइट पे जाएंगे और तुरंत उसमें रिन्यू का ऑप्शन आता है, आप रिन्यू कर सकते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप रिन्यू कर लीजिए, है ना। और फॉर्म में वो कहीं नहीं मांग रहा रजिस्ट्रेशन, लेकिन रिन्यू करने में कुछ नहीं आ रहा है, रिन्यू करके रखिए क्योंकि सिलेक्शन होगा तब तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए प्लीज रिन्यू कर लीजिए, बहुत ही इजी प्रोसीजर है, ऑनलाइन हो जाता है। कि सर विदाउट रिन्यू अभी नहीं मैं फिल कर सकती फॉर्म? फॉर्म फिल कर सकते हैं, फॉर्म में कहीं मांग नहीं रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, आप फॉर्म Okay, फिल sir. कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप फॉर्म फिल अप कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन, फॉर्म फिल अप कीजिए आप। बस ये है कि संग-संग रिन्यू करवा लेना। ओके सर, एक डाउट और है सर, जैसे मैंने अभी कहीं ज्वाइन किया है वर्क करने के लिए सर, तो मैं वहाँ 10 से 2 वर्क करती हूँ सर। अभी रिसेंटली किसी कॉलेज में ज्वाइन किया है, तो सर मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं उस वर्क को छोड़ दूँ ये प्रिपरेशन करने के लिए या कंटिन्यू करूँ साथ में सर? जैसे मेरा बच्चा भी है उसको भी देखना है सर तमाम चीजें। मेरा पर्सनल एडवाइस यही रहेगा कि आप वर्क को छोड़ दीजिए, आप पूरी तरह से फोकस करिए, यू आर अ केजीएमयू ग्रेजुएट, आपके अच्छे चांस रहते हैं, आप तैयारी अच्छी तरह से करिए क्योंकि ये एग्जाम सर ने जैसे बताया कि एक पूरी सेफ्टी दे देगी, सिक्योरिटी लाइफ टाइम। एक बार आप डॉक्टर विक्रम से भी, डॉक्टर विक्रम आप इस पे कुछ बोलना चाहेंगे सर? अगर वो बच्चे, जैसे मैंने आपसे एक सवाल उस वक्त भी किया था कि ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो क्लिनिक्स कर रहे हैं और साथ में प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर जैसे बताया सर डॉक्टर अंकित सर ने कि मुश्किल है सर, मतलब वो आप दो दो नाव पे सवारी वाली बात है। आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, अगर बिल्कुल भी आपको लग रहा है कि नहीं मैं जॉब छोड़ ही नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती, आप फिर कंटिन्यू करो, फिर उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लो कि आपको अपने टाइम्स में फिर वो 2-4 घंटे आपको एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे, आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, वो कर सकते हो। बट अगर आप पॉसिबल हो तो प्लीज आप वो छोड़ के सिंगल माइंडेड होके आप कर लो। 6-8 महीने की बात है, कुछ बहुत नहीं, लाइफ चेंजिंग हो जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ, सब कुछ प्लान कर सकते हो आप आगे फ्यूचर में। डॉक्टर श्रद्धा सर मेरा क्वेश्चन विक्रम सर से था कि सर जब आपने प्रिपरेशन करी थी तो आपका मतलब डेली कैसा स्ट्रैटेजी रहता था डेली का, कि आप कैसे प्रिपेयर करते थे? मतलब कहने का दिन मतलब का ये है कितना पूरा GS दिन कैसे आप अपना डिवाइड करते? जब मैंने एग्जाम दी थी डॉक्टर, तो मैं बेसिकली मेरी एसआरशिप चल रही थी, तो मैं बहुत ऑक्यूपाइड हो रहता था बिकॉज 9 to 5 मेरे होते हो तो 8 घंटे होते थे। बट हाँ ये होता था कि मैं वहाँ पे भी अपने टैब बुक्स जो चीजें होती थी वो मैं लेके बैठा होता था और अपने जोन में होता था। वो आपको मतलब जब काम हो रहा है तो काम आप करो, बट इसके अलावा जो है कोशिश करो जितना समय निकल सकते हैं वीकेंड पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करो, फुल टाइम दो, खूब पढ़ो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो रोड मैप है ना, प्लानिंग जो है वो आपकी पहले सबसे पहले आप वो करो कि आपको पढ़ना क्या क्या है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है। फिर आपको अंदर से ही आने लग जाएगा कि हाँ यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं अब कोना पकड़ के मैं पढ़ाई शुरू करने वाली हूँ, तो वो आपको आ जाएगा। तो पहले आप प्लानिंग के हिसाब से क्लियर हो जाओ, फिर उसके बाद जहाँ पे भी जॉब में हो आप वहाँ टाइम निकालो मैक्सिमम, आप पढ़ो वैसे। और अगर फिर भी नहीं हो रहा है, बहुत हेक्टिक सा है, जा रहे हैं दिन भर में 5-6-7-8 पेशेंट आपसे करवाए जा रहे हैं, या कुछ ऐसा काम है जो क्लरिकल है, आप छोड़ दो। मेरा यही सजेशन होगा अगर सर वो एक कोई बहुत क्वेश्चन, एक एक्टिव। बच्चे का क्वेश्चन है सर। सर ही इज आस्किंग लाइक he has moved to a non clinical branch and he's a fresher, so how he can, like, actually he has personally he messaged me like he is from other state, so like he has just opted a non clinical branch and has been out of touch of the study and everything, like the clinical also and everything. तो सर अगर इस एस्पेक्ट में वो अगर ये फॉर्म भर रहा है तो वो कैसे चीजों को मैनेज कर सकता है? सर ये डे 0 है, हम लोगों ने शुरू में ये डिस्कशन किया था। आप बिल्कुल भी मत सोचो आप नॉन क्लिनिकल हो, आप कुछ और पढ़ाई शुरू कर दी हो, कुछ भी आपने बीडीएस किया है ना, तो आप मत सोचो। आपके लिए जो ग्राउंड है वही ग्राउंड जो रैंक 1 आएगा उसके लिए भी वही है
है ना, शायद आप ही रैंक 1 हो जाओ। तो ये बिल्कुल मत सोचो आप कौन सी ब्रांच में हो, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, डेंटिस्ट्री छोड़ दी, कुछ और कर रहे हो। डोंट बॉदर अबाउट ऑल सच थिंग्स, टाइम निकालिए और बस पढ़ाई पे लग जाइए। 1+ AC सर मेरा सवाल है कि सर एससी कैटेगरी की सर कट ऑफ क्या रहेगी सर पिछले सालों में, सर वो थोड़ा सा डिस्कस कर। नितिन सर, इस पे अगर आप गाइड कर पाए, अगर एससी का क्या है कट ऑफ? मैंने देखिए वो लोग कट ऑफ निकालते नहीं है और मोस्टली ये देखा गया है कि सीटें खाली रह जाती हैं एससी की, क्योंकि उतने कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो कट ऑफ वो निकालते नहीं। लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया है, मेरे ख्याल से यूपीपीएससी का कैटेगरी के लिए 30%, मिनिमम 30% आपको स्कोर करना पड़ेगा आउट ऑफ 150 मार्क्स। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं अगर किस इसमें मैं इसमें थोड़ा-सा बोलना चाहूँगा, अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो आपको थोड़ा-सा चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। डॉक्टर विक्रम, आप कुछ कह रहे हैं? मैं वही कह रहा था सर कि आप जो है ना, कंपटीशन टफ रहेगा और कैटेगरी का बिल्कुल भी दिमाग, आप जनरल सोच के करो प्रिपेयर, है ना, आप जनरल सोच के करो कि मुझे उतना स्कोर करना है 60-70%, आप उससे आपका जो होगा आप अपनी कैटेगरी में टॉप कर जाओगे। सो आप वो सोच के चलो कि मुझे उस लेवल का प्रिपरेशन करना है, करते करते आपका फिर अच्छा हो जाएगा। पहले से आप अगर अपने माइंड में ये लेके चलोगे मुझे कैटेगरी कट ऑफ क्लियर करना है, वो सही नहीं होगा। पता फिर उससे क्या होगा, आप कुछ और आपको लगा कि अच्छा ठीक है मुझे तो इतना ही करना है, तो मैं चलो इस साथ में ये भी कर लेता हूँ, मैं मैच भी खेल लेता हूँ, मैं क्रिकेट भी देख लेता हूँ, वो फिर आपका डाइल्यूट हो जाएगा, फिर वो कट ऑफ भी क्रॉस नहीं होगा, है ना? सही तो ये चीज है। जी थैंक यू सर। रूहानी Good evening, sir. I have few questions. So my first question is the preparation in comparison to NEET MDS. Okay, NEET MDS के comparatively, if you see, as we have discussed in detail about this aspect of UPPSC, the questions are going to be simple. NEET के आने के बाद, as we are all aware that questions are like the difficulty level is high. वो बहुत random हो, बहुत अगर ऐसा होगा कि वो शायद कोई easy questions पूछें आपसे, questions के level pictorial questions पूछेंगे, scenario based questions पूछेंगे. UPPSC is not bothered about all such things. They will ask you simple questions. आप 19 में देख लो, 23 में देख लो, अभी ये फिर से पेपर होने वाला है उसमें भी देख लेना आप। दे आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम देयर वे ऑफ लुकिंग एट दिस पेपर, है ना? तो प्रिपेयर फॉर सिंपल क्वेश्चंस बट ब्रॉडन योर बेस। सर डॉक्टर मेरा एक प्राची सवाल ने है कि लाइक सर, डॉक्टर प्राची जैसे ने इस बच्चे ने एक सवाल किया है, नीट एमडीएस और यूपीपीएससी, सर आपने तो दोनों ही मतलब अपने जगह पे चीजों को किया है, तो आपके हिसाब से लाइक दोनों एक बहुत सेपरेट अरीना है, लाइक डेफिनेटली सर, डेफिनेटली वो, बट ये है कि नीट में वो आपसे जीएस की चीजें नहीं पूछ रहे, वो आपसे बिल्कुल डेंटल मेडिकल इन सब चीजों में आपसे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और उसी में वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। नीट में क्या हो रहा है सर कि जो नए रिसर्चर्स, जो हम लोग पीजी में जो रिसर्च पढ़ते हैं, पेपर कोई नया रिसर्च आया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपके वहां से डेटा ले लेते हैं, या कोई नया डिवाइस आया उसकी फोटो डाल दी, तो वो उनका तरीका है पेपर को टफ करने का। लेकिन यूपीपीएससी जो है ना, वो आपको, मैंने कहा, एक ऐसा डेंटल स्टूडेंट जिसको बेसिक चीजें पता है अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ dental and medical, basic चीजें, and someone who is aware about his nation, his country's constitution, general awareness उसको हो, climate कैसा है हमारे देश का, जिस स्टेट में जॉब करने जा रहे हैं वहाँ कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कितने लोकसभा क्षेत्र है, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये चीजें उनको ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए। तो सर that's the ये सवाल करने का इसलिए एक्सपेक्ट था क्योंकि देखिए सबको ये समझना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, क्योंकि सर देखिए, क्योंकि ये लोग कई जगह नीट एमडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मटेरियल लेके रखे हैं, तो मैंने इन्हें यही बताया कि वो सारा मटेरियल यहाँ काम नहीं आएगा, क्योंकि हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं इसमें आपको हर चीज एक क्यूरेटेड यूपीपीएससी में जो जरूरत पड़ेगी वो हम दे रहे हैं, वो सारा मटेरियल हमने कलेक्ट करके आपके लिए रखा है, तो वो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझनी होगी कि दोनों का प्रिपरेशन बहुत अलग है। हाँ डॉक्टर अंकित, आप अनम्यूट कराइए किसी और से, अगर कोई और सर अगर एग्जाम नीट एमडीएस के ड्यूरिंग आ रहा है या काउंसलिंग के बीच में आता है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए उसमें उनका एक क्लियर कट है कि अगर आप दे रहे हो, देखो आपको मैं बताऊं एक अपने टाइम की चीज, ये जो जॉब है ना मैम, ये ऐसी चीज है ना जिसकी सिक्योरिटी का जो एस्पेक्ट है वो काफी स्ट्रांग है। तो मुझे याद है जब मैं था तो केजीएमसी का आधा बैच जो है उन्होंने अपने, केजीएमसी आप समझ रहे हो कि वो किस लेवल की का कॉलेज है और वहाँ पे किस लेवल की रैंक के लोग आते हैं। तो जब बारी आई थी लोगों की पीजी छोड़ने की, तो जब कहा गया कि दोनों में से एक चूज करना है, तो लोगों ने पीजी छोड़ दी थी। बहुत कम ऐसे बच्चे थे जिन्होंने नहीं छोड़ी थी, है ना? तो ये एस्पेक्ट आपको देखना होगा कि अभी के टाइम में बहुत अनसर्टेन हो गई हैं चीजें, है ना? जॉब क्राइसिस है, ये है, वो है, प्लस आपको एक डिसेंट लिविंग के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी बेसिक तो चाहिए ही, प्लस 8th कमीशन का एक प्रोविजन आ रहा है जहाँ पे आपको सैलरी आपकी हाइक होगी, है ना? तो आप ये सोच के रखो कि आप प्रायोरिटी बनाओ, आप इस एग्जाम को प्रायोरिटी बनाओ, और एट द एंड वो चॉइस आपकी है कि आप पीजी में जाना चाहते हो या क्या। गवर्नमेंट अगर प्राइवेट कॉलेज या इन सब चीजों के लिए प्लान कर रहे हो, स्ट्रेट लेवल से आप प्राइवेट पीजी छोड़ना पड़े छोड़ दो, एडमिशन लेने का के ड्यूरेशन में हो रहा है, आप मत लो एडमिशन, कम फॉर दिस जॉब।
100%, चाहे कोई भी प्राइवेट कॉलेज हो, ऑल ओवर इंडिया। गवर्नमेंट में आपका चॉइस है, अगर आप किसी सब्जेक्ट के लिए बहुत पैशनेट हो तो आप उसको ले सकते हो। वो सिनेरियो होता है, फर्स्ट ईयर में आप हो तो शायद छुड़ा देंगे, सेकंड थर्ड ईयर में अगर आपकी थीसिस कंप्लीट हो रही है तो वो आपको कहेंगे कि आपको वो दे देंगे टाइम। ये सब चीजें हैं। अब तो यूपी गवर्नमेंट ने दिया है एक नया, एक लास्ट ईयर तो उन्होंने ये चीज कहा था कि आप जो है पीजी अगर आप कर रहे हो, रिस्पेक्टिव ऑफ विच ईयर यू आर इन, आप छोड़ सकते हो, आप लीव ले सकते हो और आप बाद में आके ज्वाइन कर लो। आपको अलॉट कर देते हैं पहले ही वो सीएचसी। सो इट इज वेरी सिक्योर कि आप तो उस डायलेमा में आप मत फंसो कि मैं तब क्या होगा, है ना। तो आप अभी तो ये सोच के रखो एग्जाम होने वाली है एंड आई एम गोइंग टू गो फॉर इट। ठीक तो है। वो हमें बाद में अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम लीव लेके एमडीएस भी कर पाएं? यस यस यस, वो है। ऐसा नहीं कि आप जॉब में हो और मतलब जॉब और एमडीएस जब आपका कोइंसाइड हो रहा होता है कि आप एमडीएस में हो तो फिर वो इस साल उन्होंने प्रमुख सचिव जो थे पार्थ सारथी सिंह शर्मा, ही इज अ वेरी कंसिडरेट मैन, तो उन्होंने इस साल उन्होंने ये चीज कर दिया। अब वो एक बन गया कि वो ट्रेंड बन गया कि अब अगर ऐसा होगा फ्यूचर में भी तो वो मोस्टली 99.9% आप मान के चलो वो आपको पीजी करने देंगे। तो वो आपके लिए सीएचसी सिक्योर्ड रहेगी कि हाँ आपने यहाँ ज्वाइन आके आपको यहाँ अलॉट हुआ है तो आप आइए पीजी करिए, पीजी के बाद आइए और आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए, है ना। सर, और एक क्वेश्चन है कि इज इट वर्थ इट फॉर स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट्स के हैं कि वो वहां से मूव होके दूसरी स्टेट में जॉब करें? 100%। अगर ये यूपी नहीं होता मैं आपको नहीं कहता। यूपी, दिल्ली, ये दो ऐसी प्लेसेस हैं क्योंकि मैं रहा हूँ कई जगहों पे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूपी आना वर्थ इट है। आपको ना कोई डिस्क्रिमिनेशन कोई फेस कर रहा होता है, ना आपको लैंग्वेज के लिए कोई परेशान करता है, आपको अच्छी सैलरी देते हैं ये गवर्नमेंट। प्लस इसके अलावा अभी के यूपी के करंट सिनेरियो में कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है विच इज नॉट लिवेबल, है ना, कि आपको ये नहीं है। आप थोड़े से डिस्टेंस पे आपको एक कोई बड़ा सिटी का एक मेजर सिटी आपको मिल जाएगी। तो आप वो भी मत सोचो कि मेरे पीजी के ड्यूरेशन में, मेरे एसआरशिप की ड्यूरेशन में ये चीजें होती थी कि जब मेरे उधर महाराष्ट्र साइड के या कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर यूपी आके करना वर्थ है क्या, और फिर जब मैंने उनको सजेस्ट किया था उन्होंने ज्वाइन किया एंड दे आर नॉट रिग्रेटिंग इट। एंड दैट्स व्हाई यू विल सी कि बहुत सारे जो टॉप रैंकर्स हैं अभी के समय में पीजी के लिए यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट दोनों एग्जाम्स में तमिलनाडु से, जिनको लैंग्वेज के भी बहुत इश्यूज थे, वो आके भी जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यूपी उस मामले में बहुत एक्सेप्टिंग है कि आपको इट विल नॉट लेट यू डाउन। डोंट वरी अबाउट। Sir, if somebody is lacking clinical experience due to preparation period. ओके। डॉक्टर साहब बस यहाँ पर सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, दूसरे स्टूडेंट्स को मौका दो वन बाय सुरभि, वन। Okay, sir. Okay. सुरभि, अविनाश, गुड इवनिंग सर। सर मेरा सवाल है कि अगर डेंटल पल्स बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ ली और कोचिंग के जो जीएस के नोट्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिए तो सफिशिएंट है या फिर जैसे जीएस के लिए आप अलग-अलग बुक्स बता रहे थे वो भी करना ज़रूरी है? जीएस का देखिए जो मैंने सब बुक्स बताई है ना वो आपका बेस बुक है ना। वो आप एज अ रेफरेंस बुक आप रखो। देखो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो, मटेरियल भी आप वो कर रहे हो, लेकिन हर चीज मटेरियल के तौर पे जब तक कोई चीज आप बुक से नहीं पढ़ते हो तब तक आपको एसिमुलेशन में इशू होगा। आप क्योंकि देखो आपको जो भी बुकलेट मिल रही है या टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो डायरेक्ट हूबहू ऐसे उठ के नहीं आ जाएंगे। आपको एक बुक का बेस चाहिए होगा, है ना। आपको ये चीज समझना होगा, बुक का बेस होगा इसका मतलब तो ये बुक कवर कैसे करे, है ना, ये सवाल होता है। आप बुक जल्दी से जल्दी ले लो, उसमें जो टॉपिक्स, जो हॉटस्पॉट टॉपिक्स हम बता रहे हैं उस पे आप फोकस करो, उसको पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, उसके बेस पे क्वेश्चंस आपके टेस्ट सीरीज में आएंगे। आपके नोट जो आपको नोट्स दिए जाएंगे उसमें आप उसी को रिवाइज करोगे तो आपका फिर वो बनेगा कि अब आप एग्जाम में क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप यू विल बी एबल टू टैकल इट, है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। आप सिर्फ कोई भी एग्जाम हो दुनिया में सिर्फ टेस्ट सीरीज और सिर्फ वो जो हैंडआउट्स हैं उसके भरोसे आपको एक बेस बुक बनाना पड़ेगा। हम ये नहीं करें आप 300-400 पन्ने की बेस बुक को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं, हम आपको टॉपिक्स बता रहे हैं कि वो कहाँ से क्वेश्चंस रेज होंगे। वो कुल मिला के लगभग 50 ऐसे एरियाज होंगे जो आपको पढ़ने हैं। बुक से पढ़ोगे आप तो क्या होगा कि वो अगर हैंडआउट में 4 पॉइंट्स हैं तो वहाँ 10 चीजें लिखी रहेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ ये ऐसा होता है ना। तो इट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर आप समय उसके लिए टाइम ही नहीं निकाल पाओगे, अगर कि नहीं मैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव इट सम टाइम टू योर प्रिपरेशन, तब आपको वो कॉम्प्रिहेंसिव हो पाएगा। और सर डेंटल पल्स अगर 2-3 बार रिवाइज किया तो वो सफिशिएंट है ना? मोर देन सफिशिएंट, वो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर। अविनाश गांधी, अविनाश गांधी। Hello. क्वेश्चन पूछिए। Good evening, sir. I have two main questions. My first question is कि क्योंकि डेंटल पल्स ऑलरेडी खुद इतना वास्ट है तो हम कैसे प्रिपरेशन करें कि विद इन 6 मंथ्स हम ऑल थ्रू क्वेश्चंस कर पाए जो भी यूपीपीएससी में पूछे जाएंगे या आपके टेस्ट सीरीज के थ्रू या जो भी। बिकॉज बहुत दिन बाद अगर मैं क्लिनिशियन हूँ, मैं डेंटल प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं बहुत दिन बाद एकेडमिक्स में फिर से ज्वाइन हुई हूँ। तो वो थोड़ा एक वही पूछना था कि कैसे इसको मैनिपुलेट करें या कैसे अपना स्टडी शेड्यूल ये करें कि हम इसको कवर अप कर सके विद इन 6 मंथ्स।
मैम देखिए, इसमें ऐसा है कि एक तो है कि आपको सर्टेन आवर्स देने हैं, मतलब जैसे मैंने बताया 6-8 घंटे आपको निकालने होंगे। प्लस आप देखो कि पल्स में, जैसे आप पल्स सॉल्व करने के लिए जाते हो ना, तो कोई सब्जेक्ट जैसे है, तो कोई चैप्टर है, या तो आप पहले उसकी साइनॉप्सिस पढ़ते हो, है ना? आप पहले साइनॉप्सिस पढ़ते हो तो कुछ चीजें आपको याद आती हैं। फिर आप उसके क्वेश्चंस जो जैसे मैंने बताया, फिल्टर करना है आपको क्वेश्चंस को, है ना? आपको लंबे क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, सिंपल क्वेश्चन। जब आप पल्स खोलते हो तो 1980s के क्वेश्चंस दिखते हैं, है ना? तो आप वो 80s के क्वेश्चंस को देखते हो, पहले आपने सिनॉप्सिस पढ़ ली, फिर आप वो इनिशियल क्वेश्चंस पढ़ते हो, उसके अगर आपको बिल्कुल नहीं पता चला यार सब कुछ भूल गए हैं, आप उसका आंसर पढ़ लो। फिर सेकंड क्वेश्चन, आप उसका आंसर पढ़ लो। इस तरह से क्वेश्चन पढ़ो और उसका आंसर पढ़ दो, तो आपका जो बेस है ना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द टेक्स्ट बुक, आप पल्स से आप वो चीज निकालो। आप पल्स का सिनॉप्सिस और जो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत हद तक आपके इस एग्जाम के लिए जो भी थ्योरी का बेस चाहिए ना, वो आपको वो प्रोवाइड करा देगा। एक तो ये बात हो गई कि आप इस तरह से आप पढ़िए। इसके अलावा क्या होता है कि जब आपने एक दिन पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट डे जब आप पढ़ते हो ना, तो जो आपने प्रीवियस डे जो पढ़ा था, उसके लिए एक टाइम निकालो, हाफ एन आवर या 1 घंटा आप निकाल लो कि मैंने जो पिछले दिन पढ़ा था वो मैं रश थ्रू एक बार में हो जाऊंगा, है ना? तो आपने एक रिवीजन जो है हर दिन 24 घंटे कहा जाता है साइंटिफिकली, 24 आवर्स में आप एक बार जो आपने पढ़ा है उसको अगर आप रिवाइज कर लेते हो, तो देयर आर चांसेस कि वो रिटेन आपके ब्रेन में ज्यादा होगा। तो आप अगर आपने मान लिया दिन भर जितना पढ़ा, मार्क किया, जितने पन्ने पढ़े, अगले नेक्स्ट डे भले वो आपको सब, अरे मैं तो भूल रही हूँ, ठीक है, वो नेक्स्ट रिवीजन जब आप वीकेंड पे करो या जब भी करो, जब आप फुल रिवीजन करोगे तो आपको फिर वो याद आने लगेगा। लेकिन विद इन 24 आवर्स आपको एक ग्लैंस जरूर देना है जो आपने पिछले दिन पढ़ा है सर ना? एक सवाल है सर एक सवाल है कि ये जो पीवाईक्यू है, जो पहले क्वेश्चंस हो चुके हैं या पेपर आ चुके हैं यूपीपीएससी का, उसके सवाल मैच करते, क्योंकि हमने अपने टेस्ट सीरीज में भी एक पीवाईक्यू सेक्शन रखा है, तो जैसे हाँ, उससे क्या होगा, बच्चों को चीजों को पता चलेगा। यस सर, वो जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, आप टेस्ट सीरीज के लिए, आप टेस्ट सीरीज में जो चीजें क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया ना, आप पल्स भी बेसिकली पीवाईक्यू ही है। लेकिन अगर आप ये कहो कि यूपीपीएससी के लिए ओडिशा पीएससी के क्वेश्चंस कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो मैं वो नहीं कहूंगा। यूपीपीएससी के लिए जो पल्स के क्वेश्चंस हैं, वही उतना ही वेटेज ओडिशा पीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन का है ना? तो अगर आप पल्स करते हो, तो आप एज अ टेस्ट पेपर आप वो पीएससी के पेपर लगा सकते हो। टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आएंगे, आपको पीएससी के पेपर के लिए अलग से मुझे नहीं लगता आपको सर फोड़ना चाहिए। आप पल्स करिए, समय मिल जाता है, हर कोई अलग अलग प्रिपरेशन की जोन में होगा, तो कोई अलग अलग लेवल पे होगा, किसी ने पल्स कर रखी होगी, आप जाइए उन सब क्वेश्चंस के लिए। बट अदरवाइज आप पल्स से रहिए, पल्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज को लगाइए, समय मिलता है तो कभी कभी एज अ टेस्ट पेपर या एज अ मॉक पेपर ही आप वो स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस लगा सकते हो। डॉक्टर माधुरी, पल्लवी, डॉक्टर माधुरी, हेलो डॉक्टर, सर, हाँ बोलिए बोलिए। डॉक्टर आई एम डॉक्टर माधुरी हियर। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मैंने 2018 में पास आउट किया है बीडीएस, उसके बाद मैंने एकेडमिक्स में ही मतलब जो नीट की प्रिपरेशन है वो की है, तो क्लिनिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हम इंटरव्यू देने जाएंगे, एग्जाम देंगे, तब वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस इतना मायने रखता है? जीरो जीरो जीरो। पल्लवी, हेलो सर, ये मुझे पूछना था कि एग्जाम जो होगा वो कहाँ पे होगा? मतलब अगर मैं मुंबई में रहती हूँ तो वो मेरे स्टेट में होगा कि यूपी में होगा? और यूपी जो में होगा, यूपी में होगा, और लखनऊ और इलाहाबाद सेंटर दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन, सवाल सर, है नेक्स्ट और क्वेश्चन। इंटरव्यू इंग्लिश में होगा कि हिंदी में होगा? दोनों दोनों लैंग्वेज लैंग्वेज होता है, दोनों लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज रहती हैं, विच एवर यू आर कंफर्टेबल उस पे आप कह सकते हैं। यस। अच्छा, थैंक डॉक्टर यू। स्वीटी, शेफाली, स्वीटी डॉक्टर यादव। शेफाली, हाँ हेलो। बोलिए, जी क्वेश्चन पूछिए। बोलिए। हाँ यस सर, सर एक्चुअली मेरा डाउट ओटीआर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड है, कि ओटीआर जनरेट करते टाइम ना मुझसे गलती से गलत ईमेल आईडी चला गया है, मेरा ओटीआर नंबर रजिस्टर हो गया है, तो एंड मैंने एक्चुअली ग्रीवेंस फॉर्म भी अप्लाई कर दिया है उनको, बट क्या मैं इस ओटीआर नंबर जो मेरा गलत ईमेल है उसके साथ फॉर्म फिलअप प्रोसीड कर सकती हूँ, या व्हाट आर द क्राइटेरिया टू चेंज माय ईमेल आईडी? इसका जवाब डॉक्टर अंकित दे देंगे। डॉक्टर अंकित जल्दी से दे दीजिए इसका जवाब। देखिए डॉक्टर, आपका जो ओटीपी होता है वो ईमेल और नंबर पे आता है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम आएगा। अगर मान लीजिए आपके ओटीपी अगर नंबर पे नहीं आ रहा है, तो वो ईमेल पे भी आपको मिल नहीं सकता, तो इसीलिए दोनों चीजें दी जाती हैं ताकि किसी पे भी आपको ओटीपी मिल जाए। तो एज सच अगर दोनों में से एक चीज चल रही है तो काम चल सकता है, लेकिन आपने जैसे ग्रीवेंस फॉर्म भर दिया है तो दे विल हेल्प यू आउट, आप उसकी टेंशन ना लें, वो हेल्प कर देंगे। फिर भी आप सर हमें पर्सनली मैसेज कर एक्चुअली देना, मैंने हम आपकी हेल्प ग्रीवेंस कर देंगे। फॉर्म 20 डॉक्टर 23rd डॉक्टर 24th। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर देखिए, आपके फॉर्म फिलिंग के जो डाउट है आप अपने एडमिन से पूछ हाँ सकते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे। राइट, आप यहाँ पे बेसिक आप अपने एग्जाम के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि डॉक्टर विक्रम के पास हमेशा इतना टाइम नहीं रहेगा, सॉरी टू इंटरप्ट, और जो भी डाउट पूछ रहे हैं ओके बच्चे सर। वो एग्जाम रिलेटेड पूछे प्लीज। हाँ तो नेक्स्ट। डॉक्टर दीपाली वर्मा।
डॉक्टर दीपाली वर्मा। हेलो सर, गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट था कि डॉक्टर विक्रम से कि सर किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? एक दिन में हमें मतलब क्या टारगेट लेके चलना चाहिए? कितने पेजेस हमें पल्स के खत्म करने हैं? और कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए सो दैट कि हमने इतने टाइम बाद जॉइन किया है और मतलब एकेडमिक्स में आए हैं, पढ़ना शुरू किया है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट राइट स्ट्रेट अवे। तो कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करें और कितने पेजेस एक दिन में करें? देखिए पेजेस का तो डिपेंड करता है कि आपको कितना कितना याद आ रहा है ना। तो पेजेस का तो आप जब पढ़ोगे ना पल्स आपको समझ में पता चला पेजेस टर्न हो रहे हैं लेकिन याद नहीं रह रहा, तो आपको एक अपनी स्पीड, जब आप पल्स शुरू करोगे ना तो आपको एक अपनी स्पीड समझ में आ जाएगी कि हाँ मुझे इतने टाइम में इतने पेजेस में सॉल्व कर पा रही हूँ। इट वेरीज ऑल्सो कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। तो जो फाइनल ईयर में आपका जो सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है आप वहां से शुरू करो। इट विल गिव यू अ फील गुड फैक्टर, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे जैसे वो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपका इंटरेस्ट, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उससे इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हमें आई कैन गो अहेड, है ना। तो आप टफ चीजें शुरू में मत करो, आप पहले जो आपको सबसे पसंद है वो सब्जेक्ट आप शुरू करो फाइनल ईयर के। राइट। अच्छा सर, डॉक्टर हाँ आद्रिका। हेलो हेलो हेलो। हाँ प्लीज पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, पूछिए। हाँ सर, मैं 2012 से एनआरएचएम यूपी में नौकरी कर रहा हूँ और सर मैं क्लिनिक भी चलाता हूँ। तो सर मैं कई बार मैंने अटेम्प्ट दिए लेकिन भाई तैयारी पूरी हो नहीं पाती है, इसलिए मेरा हो नहीं पाया सिलेक्शन। सर मैं अब मेरी काफी छूट भी गई है पढ़ाई। सर पूछना था क्या मैं अटेम्प्ट। डॉक्टर साहब ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लिनिक भी कर रहे हैं, अब आप और क्या चाहते हैं? 300 रुपए कम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मतलब ये सर कैसा सवाल है? सर मैं परमानेंट होना चाहता हूँ। सर मैं अभी तो मैं कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हूँ सर। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर साहब में हमेशा एक्सटेंड होता रहता है। आप परमानेंट हैं, जब तक नहीं वो सर वो प्रोग्राम नहीं खत्म होता तब तक आप परमानेंट हैं। आप नहीं एक सर बार वो ये तो है लेकिन सर वो सैलरी नहीं है जो उसमें मिलती है अरे यूपीपीएससी क्लिनिक में। से भी तो कमा ही रहे हैं डॉक्टर साहब डॉक्टर विक्रम सर ने ऑलरेडी एक प्रेफरेंस बता दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट प्राची निगम। सर गुड इवनिंग सर। सर क्या मुझे इस एग्जाम के लिए डेली न्यूज़पेपर्स, हिंदू राव और ये सब मतलब द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब पढ़ने की नीड है? नहीं, आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। डोंट गो दैट लेन, है ना, आप उधर मत जाइए। ओके, थैंक यू सर। पोको M4 Pro। नेक्स्ट डॉक्टर लियो पूछ सकते हैं बस। नेक्स्ट रियलमी नार्जो। हेलो। आप पूछिए। सर क्लिनिक मेंटेन करते करते सर ये प्रिपरेशन कैसे करना है सर, ये पूछना था। इसका तो अभी सर ने जवाब दिया था। ये क्वेश्चन अब नेक्स्ट प्रिया। गुड इवनिंग सर। सर मेरे पास डेंटल पल्स के 15th एडिशन है और मैंने करेंटली 18th एडिशन जो न्यू वाला लिया है, तो मैं सर किसको फोकस करूं? दोनों इस एग्जाम के लिए दोनों आपने कोई पहले सॉल्व किया था सर। हाँ जो सॉल्व किया आप उसी पे जाइए और उसमें जो मैंने बताया, जो रेंज बताई मैंने, आप उस एरिया उस टाइप के क्वेश्चंस को फिल्टर आउट कर लीजिए। जो लेंथी क्वेश्चंस है उसको अवॉइड करिए, जो वो सिंपल क्वेश्चंस है उस पे फोकस करिए। तो क्योंकि ये एग्जाम सुन के मैंने न्यू एडिशन लिया था, तो मतलब मैं इसे छोड़ दूंगा, पुराने एडिशन को सॉल्व करूं? बिल्कुल 100%। रियलमी नार्जो। यस सर। सर मेरा डाउट ये है कि मैं नीट एमडीएस की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो उसमें तो मुझे मेडिकल और डेंटल दोनों ही काफी डीप और केस बेस्ड पढ़ना पड़ रहा था, और इसके लिए इतना जरूरत नहीं है मेडिकल के केस बेस्ड का जैसा कि आपने बताया, और मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना होगा। तो मैं कैसे मैनेज करूँ दोनों चीज, मुझे वो जानना था, टाइम टेबल। देखिए नीट एमडीएस के लिए अभी तो मैं यही कहूंगा कि आप प्राइमरी फोकस इस एग्जाम को बनाइए, है ना। नीट एमडीएस जब एग्जाम शेड्यूल्ड हो या इवन अगर बीच में पहले आपकी नीट एमडीएस आ जाती है, आई विल स्टिल सजेस्ट कि अगर आप दोनों साइड से उस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप जाओगे तो फिर आपकी इधर वाली प्रिपरेशन हैम्पर होगी। तो आई विल नॉट सजेस्ट आपको, यू विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस कि क्या करना है ना, क्योंकि आपको जीएस भी पढ़ना है। जब एग्जाम हो जाएगी और आप जीएस में मान लेते बहुत खराब कर रहे होगे ना, तब आप रिग्रेट करोगे कि यार काश मैंने जीएस उस टाइम पढ़ लिया होता, है ना। तो मुझे वही लगता है, नीट को इस एग्जाम को प्रेफरेंस आप दे सकते, चॉइस इज योर्स। अगर आप एमडीएस के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, मुझे स्पेशलिस्ट बनना है, करना है, तो फिर इट्स टोटली अप टू यू। बट अगर आप ऑनेस्टली पूछोगे कि इन जनरल व्यू मेरा क्या है, तो मैं यही कहूंगा आप इस एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करिए अच्छे से। सर एक सवाल है जो डॉक्टर सक्सेना। डॉक्टर सोनाली। बहुत सारे पीजी बच्चे डॉक्टर सक्सेना। पीजी कर रहे हैं, तो अगर उन्हें ये जरूरी है कि वो जॉब छोड़ना है, वो लाइक अपना एक्सटेंशन लेके वो कंप्लीट कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ होता है? कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर इस साल आ गया था। आप पीजी करते करते आप अगर आप चाह रहे हो, आप एक लेटर लिख के दो उनको, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं अभी पीजी में। यस एकदम बिल्कुल, मैं यूपी का ही बता रहा हूं। बिल्कुल।
डॉक्टर सक्सेना आप पूछ सकते हैं। हाँ, सर एक्चुअली मेरे पास हैंडीकैप होता है, लेकिन मेरे वाला जो होता है वो कैटेगरी इस नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। तो मैं फॉर्म जनरल के हिसाब से ही भरूँ या मैं कोटा मेंशन कर दूँ और वो नहीं, बाद में कंसिडर हो सकता है? देखिए आप फॉर्म जब भरेंगे तो आप अपनी कैटेगरी भरिए, क्योंकि आप स्टेट के हैं, आपको मान लीजिए एसटी कैटेगरी है, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से सर भरिए। एसटी नहीं है, हैंडीकैप हाँ, होता है। डॉक्टर साहब इनका ये क्वेश्चन सुनो इनका क्वेश्चन मेरी इनसे फोन पे बात हो चुकी है, मैं फिर से इनका क्वेश्चन रिपीट कर दूं। इनकी स्पीच प्रॉब्लम है, स्पीच से ये पीएच इन कैटेगरी है, बट फॉर्म में स्पीच के रिलेटेड कुछ कैटेगरी मेंशन नहीं, वहां पर लो विजन है, आई थिंक लो कुछ ऐसे 4-5 उन्होंने लो विजन ऐसे होना है। हाँ पर वहां पर स्पीच के रिलेटेड कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि ये हैंडीकैप पीएच कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करें या फिर जनरल से? इस पे कोई किसी के व्यू, अदरवाइज तो मैंने इनको बोल दिया कि आप मेल करें तो आपको अच्छे से वो क्लैरिफिकेशन दे पाएंगे। डॉक्टर सक्सेना इसमें ये मैं बताता हूँ, परफेक्ट ये है। डॉक्टर सक्सेना आपका जो भी नाम है, आपको जहाँ पे आपको पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट मिलता है ना, जो हॉस्पिटल आपको इशू करता है, आपको वहां जाना है। और जो देखिए जो सीट मैट्रिक्स है, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, आप अपने एडमिन से मांग लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो उसमें सीट मैट्रिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है और उसमें हर एक पीएच की कैटेगरी को अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं जब समझ सकता हूँ आप इसमें बहुत कंफ्यूजिंग टाइम में है, तो आपको उसी हॉस्पिटल में जाके पूछना पड़ेगा कि इस सारे डिस्ट्रीब्यूशन में आप बैठते हो कि नहीं। अगर नहीं बैठते हो तो आपको फिर जनरल सप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर अंकिता, नेक्स्ट डॉक्टर कंचन वर्मा, मोटरोला मोटो G54। हेलो। ओके डॉक्टर कंचन वर्मा पूछिए। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास पल्स नहीं है। मेरे पास नीरज वाधवा है 2015 की पुरानी वाली। तो क्या वो काम करेगी या फिर मैं पल्स नहीं खरीद लूं? नहीं नीरज वाधवान काम नहीं करेगी मैम, वो एआईपीजी के लिए स्पेसिफिक था। आप हाँ। मत करिए, उसमें मत जाइए, छोड़ दीजिए उस बुक को। ओके, तो अगर मुझे पल्स खरीदनी ही है तो फिर मैं कौन सी लूं, मैं ये जानना चाह रही थी। अगर आपको मिल जाए पुरानी वाली जो 2 वॉल्यूम वाली होती थी 8th एडिशन तक की, अब वो अगर मिल जाए कहीं से सीनियर से बात करके किसी से अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो आप नई वाली जो भी अवेलेबल है आप एज अर्ली एज पॉसिबल ले लीजिए। और जो मैंने बताया आपको, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने, उसमें आप लग जाइए। राइट। मोटरोला मोटो G54। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि इंटरव्यू का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों हो सकता है या फिर सिर्फ इंग्लिश और सिर्फ हिंदी होगा? प्रीडोमिनेटली हिंदी होता है। आपको दोनों लैंग्वेज, वो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं आप उसी में से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। प्रीडोमिनेटली हिंदी होती है। अच्छा। और सर ये लूसेंट के अलावा भी हम किसी चीज पे जीएस के लिए कंसीडर करेंगे या फिर सिर्फ लूसेंट ही आप बताएंगे? ल्यूसेंट इनफ है। ल्यूसेंट जो है ना बहुत कंसाइज बुक है, बहुत इंफॉर्मेशन है उसमें ऑलरेडी, तो आप किसी और पे मत जाइए। हर्ष आइकॉन, हर्ष आइकॉन, रियलमी RMX 3660, सोनी। हेलो। हाँ पूछिए। रियलमी जी पूछिए। सोनी आप पूछिए। Yes, sir. I just wanted to ask. Hello. हाँ पूछिए आप। Hello. Yes, sir. Sir, I just wanted to ask from where we can get the list of important topics for each subject. सर ने जो बनाई है वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ राइट। नेक्स्ट Okay, thank you. रियलमी आप पूछिए। हेलो। हाँ पूछिए। कह रहा हूँ सर, ये जैसे मैंने पिछला एग्जाम दिया था तो उसमें जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आए थे उसमें एक भी मतलब यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो उसके लिए कहाँ से सर प्रिपेयर कर देखिए सकते हैं? सर ने वही पूरा लेक्चर में समझाया कि यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है जो यूपी पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो जनरल पे पूछता है, इसीलिए उन्होंने ल्यूसेंट बुक बताई है। बाकी हम लोग पूरी तरह से आपको गाइड कर देंगे, सर भी रहेंगे गाइड करने के लिए, तो आप टेंशन ना लीजिए। मनीषा यादव, मनीषा यादव, प्रशांत। हाँ मनीषा जी पूछिए। सर, मुझे ये पूछना था कि व्हाट इज लाइक द प्रोफाइल ऑफ द जॉब, कि मतलब वो क्या रहता है उसमें, मतलब बेसिक डेंटिस्ट्री होती है कि क्या होता है उसमें? बेसिकली उसमें ऐसा है मैम कि आपको डेंटिस्ट्री ही करनी है, वहाँ पे आपको डेंटल चेयर प्रोवाइड की जाती है, स्टाफ एक डेंटल हाइजीनिस्ट आपके अंडर होता है और आप डेंटिस्ट्री ही प्रैक्टिस कर रहे होते हो वहाँ पे। और बाकी कुछ चीजें वो आपसे जनरल कई बार नॉर्मल रूटीन ओपीडी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको शायद वो करना पड़े, इमरजेंसी नहीं कराई जाती है। और आप डेंटल प्रीडोमिनेटली आप डेंटल प्रैक्टिस करते हो। राइट। नेक्स्ट शेफाली, शेफाली केसरी। गुड इवनिंग। जी पूछिए। हेलो
सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो डेंटल पल्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें सिंपल वाले जितने हैं वो सारे ही सॉल्व करने पड़ेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल के हों, किसी भी एग्ज़ाम के हों? हेलो? जी, जी। सिंपल क्वेश्चंस का मतलब जो है ना, आप ऐसे समझिए कि जो मेनली वो कितने लंबे क्वेश्चंस है ना, आप उस पे जाइए, है ना? तो जैसे वो जो केस बेस्ड सिनेरियो होते हैं, वैसे क्वेश्चंस वो प्रेडोमिनेंटली आपको लंबा लैंग्वेज लिख देते हैं। आप बाकी वो कौन से एग्जाम में पूछे गए, एआईपीजी में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर वो सिंपल क्वेश्चंस हैं तो वो इंपॉर्टेंट हैं। बस इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रेट अवे फैक्ट्स होने चाहिए, मतलब आपको मल्टीपल उसमें चीजों में उलझाए ना। ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे, आप पल्स सॉल्व करिए, आपको समझ में आएगा कि यहाँ सिंपल फैक्ट पूछा जा रहा है, पास्चराइजेशन का टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन है ना, स्ट्रेट क्वेश्चन स्ट्रेट आंसर। प्रशांत Sir, first year questions also important? यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी First बहुत and second इंपॉर्टेंट है। year? फर्स्ट एनाटॉमी फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी थोड़ा कम, बायोकेम सेकंड ईयर, पैथोमाइक्रो इंपॉर्टेंट, है ना, थर्ड ईयर मेडिसिन सर्जरी थोड़ा थोड़ा। इस प्रशांत बार जो 25% इंटरव्यू में बोला है और 75% अपना इसका जो रिटन का है स्क्रीनिंग से, उससे रिलेटेड, तो उसमें जो नंबर होता है इंटरव्यू का वो कितना रहता है? वो आपको नहीं बताया जाता है, वो उनका कॉन्फिडेंशियल होता है। बट आप ये मान के चलिए कि पहले भी जो इनके क्वेश्चंस जो पहले इनका जब जब इन्होंने ये डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था, तब भी ये एवरेज अगर आप सोचो तो इट वाज लाइक दिस ओनली। तो वो ज्यादा वेटेज 75%, मतलब रिटन को बहुत ज्यादा वेटेज है। तो आप जब देखोगे फाइनल मेरिट लिस्ट, तो जो आपके रिटन के मार्क्स होते हैं ना, वही कमोबेश थोड़ा बहुत शफल होता है, अदरवाइज वही रहता है। तो आप ये मान के चलिए आपका मोर इम्पोर्टेंट आपका रिटन मार्क्स ही है। राइट। डॉक्टर हेलो सर। चंदा हेलो। जी पूछिए। हेलो सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि इंटरव्यू के टाइम पे क्या एमडीएस को कुछ प्रेफरेंस दिया जाता है इंटरव्यू? ये देखिए, इसमें कुछ लोगों की थ्योरी है, कुछ लोग कहते हैं कि एमडीएस होने पे थोड़ा एडवांटेज होता है, बट वो डिक्लेयर्ड नहीं है, इट इज नॉट डिक्लेयर्ड। बट अगर आप प्रिपेयर्ड हो, आपके मार्क्स ठीक ठाक है, मेन देखो आप मार्क्स पे जाओ, है ना, आपको रिटन में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। अगर आप जनरल से हो, आप एम करके जाओ कि मुझे 100 के अप्रॉक्स मुझे स्कोर करना है, फिर आप बीडीएस रहो, फिर आप एमडीएस रहो, वो आपको वो फर्क नहीं पड़ता, आपकी रैंक आएगी ही आएगी। सर अगर मैं डॉक्टर अच्छे नेहा, डॉक्टर नेहा हेलो 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 जी बोलिए। हाँ, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, आई एम सो सॉरी, बट मेरे को सिर्फ जीएस के बारे में पूछना है कि कहाँ से पढ़े हैं? डोंट वरी डॉक्टर, हम लोग आपको प्रोवाइड करा देंगे रिकॉर्डिंग, आप चिंता मत करिए। एसटी हेलो। जी बोलिए। हाँ सर, जो आउटसाइड स्टेट वाले, मैं यूपी से, मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो अभी तक तो यूपी जो मैंने नोटिफिकेशन उन लोगों के साइट में देखा, तो वो लोग अभी मतलब वो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ डिक्लेयर किया जाए आउटसाइड वाले स्टेट वाले दे सकते हैं, ऐसा तो हम लोगों ने कुछ अभी तक बोला नहीं है। तो क्या मैं फॉर्म फिलअप कर दूं क्या? बिल्कुल। ओके। डॉक्टर नित्यम आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके बोलिए। देखिए ये सवाल बार बार हो चुका है, डॉक्टर नित्यम अनम्यूट कर लीजिए अगर आपको कुछ बोलना है। डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रहा था, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो हम ग्रुप में इंटीमेट कर देंगे। फिलहाल आप फॉर्म फिलअप ओके कीजिए। ओके सर, ओके, विजय थैंक यू। वर्मा, विजय वर्मा आपके रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में आपको बता हेलो दिया जाएगा। जी पूछिए। सर, मुझको ये पूछना है कि जैसे अगर एग्जाम 4 to 5 मंथ्स में है, तो एटलीस्ट हम लोग को कितना टाइम देना चाहिए पर सब्जेक्ट? मतलब कितना हार्स या कितना डे, मतलब कितना एक सब्जेक्ट को कितने डे में कंप्लीट करना चाहिए, 4 to 5 डेज में या ऐसा कुछ? टेस्ट देखिए सीरीज आप, फॉलो करिए डॉक्टर। यस, वो आपको टेस्ट सीरीज में बिल्कुल वो उस हिसाब से प्लान किया हुआ है आपके प्रिपरेशन के डॉक्टर लिए। नित्यम एक क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर उन्होंने लाइक फ्रेशली पास है और उनका सिलेक्शन हो जाता है, लाइक इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि अगर उन्होंने लाइक अच्छे प्रोसीजर्स नहीं सीखे हैं लाइक आरसीटी एंड ऑल, तो जब पीएससी में पोस्टिंग होती है तो लाइक उन्हें वो सारी चीजें अगर नहीं हो आती हो एंड दे आर एक्सपोज्ड टू इट, लाइक इज देयर एनी डिफिकल्टी इन इट? नहीं, ऐसा नहीं है सर। आप मतलब ऐसा सिनेरियो जो है, आप जितना भी आप बीडीएस में आपने जितना भी सीखा है, आप वहां पे जाओगे, आप जो है ना, आप स्विच कर जाते। देखिए, जो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आप जब मान लेते, अगर आप वैसा सर्कमस्टेंस फेस करते हो ना, तो आप फिर एक रास्ता आपको मिल जाएगा कि क्या करना है। अगर आपने मान लेते मूलर आरसीटी नहीं करी है फॉर एग्जांपल, और आपको वहां लग रहा है कि मूलर आरसीटी करनी है, तो पता चले आप ही खुद ही एफर्ट लेके मूलर टूथ लेंगे, माउंट करेंगे और उसमें आप शुरू कर लेंगे। तो इट इज नॉट अ बिग डील। आप जॉब में आइए, वो दैट इज द बिग डील। वहां सब हो जाता है, उसके बाद सारी चीजें स्मूथ हो जाती है, आपको रास्ता मिल जाएगा। सर इक्विपमेंट्स वो होते हैं वहां पे? यस यस, होते हैं होते हैं। अच्छा ठीक है। विजय वर्मा, विजय वर्मा सर लास्ट टाइम ना मैंने 23 का एग्जाम दिया था, तो उसमें क्या हुआ था ना, मेरे आगे जो रोल नंबर था उसने कोई भी आंसर नहीं किया, लेकिन उसका क्वालिफाइड हो गया। ऐसा कैसे हुआ, मुझे ये समझ में नहीं आया आज तक।
ये किसी को समझ में नहीं आया सर। ये हमारे भी समझ में नहीं आया। यामिनी निकिता, यामिनी निकिता, यामिनी निकिता। Hello. जी पूछिए पूछिए। I want to ask if there is any non-local percentage like for the people who are attending the exam outside of UP. We couldn't get you. Please repeat. Like, is there any non-local percentage allocated for the people attending from other Unreserved. states? Unreserved. Like देखिए डॉक्टर साहब, यूआर की जितनी सीट्स हैं, आप जो भी अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उसी में फाइट होगी आपकी, और वो यूपी के लिए भी वही सीट्स हैं। तो ऐसा कोई अदर स्टेट का कोई अदर से कुछ ऐसा रिजर्वेशन नहीं है। बस एक चीज है सर, एक अच्छी चीज क्या हुई है सर कि इस साल सीटें कम है बट यूआर में 10 सीटें ज्यादा है। राइट। यूआर में ज्यादा सीटें। हाँ। चंदन सेन गुप्ता। हेलो सर। जी सर। सर जैसा कि सर ने बोला कि मेडिकल सब्जेक्ट्स, डेंटल सब्जेक्ट्स और जीएस 3 सेक्शन में प्रिपरेशन करे। अभी सर मेडिकल सब्जेक्ट्स में से ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है या कौन से टॉपिक्स है जिसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस देना चाहिए? ये मेरे ख्याल से सर ने अभी एक्सप्लेन किया है। ये सर ने अब हम वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, वहां से रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। एक सवाल है सर, Xiaomi 22 कि सर जितना जैसे इंटरव्यू लिया जाता है तो बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर ट्रांसपेरेंसी का क्या रोल होता है वहाँ पे, लाइक कोई बाइसिंग होती है गवर्नमेंट के बच्चों के लिए या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, ऐसी कोई बाइसिंग है क्या वहाँ पे? Xiaomi देखिए वो ऐसी चीज है ना, जो चीजें अगर उनका कोई स्टेटेड पोजीशन नहीं है, अगर उन्होंने लिख के नहीं दिया है तो आप जो है आप उस पे नहीं कह सकते कि उनका क्या बायस है। ये हमेशा से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमेशा रहेंगे। आप उस पे आप मत जाए, आपको उसका आंसर कभी नहीं मिलेगा। आपको इधर के एग्जाम्पल मिलेंगे तो आपको उधर के भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। सो बेटर कि ये क्वेश्चन पे ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। हेलो सर, हमारे जैसे बहुत सारे फ्रेशर्स देंगे नीट एमडीएस 2026, तो डेफिनेटली सर क्लैश होगा। और आपने कहा कि बेसिक बहुत लेवल क्वेश्चंस रहेंगे यूपीपीएससी में, तो सर उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे प्लीज सर? अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो ना तो आपको तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपको तो ये मान के चलना है कि आपको सब पढ़ना है ना, आपको तो पूरा पढ़ना है। बट अगर आप कह रहे हो कि आपको मान लो अभी पहले आपको यूपीपीएससी का अभी नोटिफिकेशन आ गया है ना, अब आपकी इसकी एग्जाम होने वाली है, आप प्राइमरी फोकस इस हिसाब से करो, है ना। इस एग्जाम को पहले टारगेट कर लो और इवेंचुअली अगर देखो हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप तो ऑब्वियसली आप उस प्रोसेस में लगे हुए हो तो आप बाद में वो आपको पूरा पल्स पढ़ना ही है। बट अभी चूंकि सबसे पहले ये एग्जाम है ना, आप नीट एमडीएस वाली जब मान अगर क्लैश भी होता है, मैं आपको पहले भी जैसे बता चुका हूँ, बेटर कि आप इस जॉब के लिए पहले ही चीजें करिए, है ना। एमडीएस आपके पास ऑप्शंस आएंगे फ्यूचर में भी, देयर विल बी ऑप्शंस जहां पे आप सर्विस के बीच में आप एमडीएस कर सकते हो, है ना। तो वो चीजें हो जाएंगी, पहले आप इस एग्जाम पे फोकस करो, इसके हिसाब से प्रिपेयर। एस डॉक्टर रहवार, डॉक्टर अंकित सर और आई थिंक ऑल आर सारे डाउट्स हो गए हैं सर। देखिए डॉक्टर विक्रम को भी बहुत ज्यादा लाइक थकान सी लग रही है, लाइक एंड डॉक्टर विक्रम, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन विद यू। डॉक्टर मैं कुछ फाइनल वर्ड्स आप लोगों से पूछूंगा सारे। हेलो हाँ पूछ लीजिए डॉक्टर, पूछ लीजिए। डॉक्टर रहवार प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। डॉक्टर रहवार आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आर यू लिसनिंग? हाँ पूछिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस फैंटास्टिक एंड लवली सेशन सर, क्योंकि सर बहुत लोग कम ही इस टाइप की जो चीजें दे पाते हैं, स्पेशली विक्रम सर, नित्यम सर, मोहित सर एंड अंकित सर, थैंक यू सो मच सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं सर क्लिनिक रन करता हूँ अपना, और सिंगल ही इंडिपेंडेंट मतलब फैमिली को भी लेके चलना होता है। तो सर क्या जो संडे को हमारे जो टेस्ट सीरीज आपने कंडक्ट की हुई है जी, वो उसका जो पर्टिकुलर टाइम होगा वो क्या होगा सर? देखिए डॉक्टर रहवार जी, टेस्ट जो है वो 9 AM पे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। आपको 48 आवर्स मिलेंगे, आप उस बीच में कभी भी दे सकते हैं, और आप मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट कुछ भी यूज करके दे सकते हैं। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से 1-1.5 घंटा निकालकर। डॉक्टर अंकित, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, 24 आवर्स के अंदर आप टेस्ट दीजिए, क्योंकि देखिए आप 8 आवर्स तक मत वेट करिए, क्योंकि रियल टेस्ट होगा, रियल चीजें होंगी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं सर विक्रम सर से एक लास्ट क्वेश्चन और करना चाहता हूँ सर। आपने ना वॉल्यूम एक्सप्लेन किया था पल्स का कि 3rd वॉल्यूम या 6 to 7 वॉल्यूम एक रेंज आपने एक्सप्लेन की थी सर। तो सर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या हम पल्स हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम मच मोर और हायर चीजों के लिए कनेक्ट रहें? सिर्फ पल्स उसमें भी मैंने जैसे बताया 8th एडिशन जब तक पल्स की 2 वॉल्यूम आती थी, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल, वो मिल जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज नए 3 वॉल्यूम है तो आप उसमें फिल्टर आउट कर लो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मोहित सर, डाउट ये था
कि जैसे सर किसी एक संडे में 3 सब्जेक्ट्स के एग्जाम एक साथ हैं, तो सर ऐसे एग्जाम्स के लिए फिर कैसे स्ट्रैटेजी रहे, मतलब एक हफ्ते डॉक्टर में साहब 3 देखिए पेपर? जो एक डे में 3-3 सब्जेक्ट्स हमने रखे हुए हैं, वो लो वैल्यू सब्जेक्ट्स हैं, उन पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, वो मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं। जैसा कि विक्रम सर ने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हम वहाँ से आपको कवर करने हैं और हम लोग भी वही पूछेंगे आपसे, ठीक है? तो ऐसा नहीं आपको पूरा-पूरा A to Z पढ़ने बैठना है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है डॉक्टर, आई थिंक सबके साथ हो गए हैं, तो आई जस्ट नीडेड वन फाइनल वर्ड्स फ्रॉम एवरी एडमिन। इट वाज रियली नाइस डॉक्टर विक्रम की आप यहाँ आए और हमें टाइम दिया, सब कुछ इट वाज रियली नाइस, बहुत Thank you. इंटरेक्शन अच्छा था। Thank you, sir. मैं स्टूडेंट से ये कहूंगा कि अपने रिएक्शंस आप तुरंत लाइव यहाँ पे दिखा दें, ताकि डॉक्टर विक्रम को भी लगे कि कितना अच्छा एक्सप्रेसिव था। डॉक्टर विक्रम, इट वाज रियली नाइस, आपने बच्चों से जुड़ के सारी चीजें बोली हैं। तो मैं आपसे बस एक लास्ट सवाल ये करना चाहूंगा सर, आपके लास्ट वर्ड्स डे थिंग, बिकॉज दिस इज गोइंग टू एंड। फाइनल वर्ड सर। Sir, final words, I would say, make it a very. सर आप बस बच्चों के रिएक्शंस देखिए सर, लाइक इट वाज सो अमेजिंग, लाइक इट वाज लाइक सर प्लीज कंटिन्यू। पहली बात, सर दिस आई वेरी थैंकफुल सर, यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट सर। या सर आप बताएं। थैंक यू सो मच सर। पहली बात तो सर, ये जो प्लेटफॉर्म है, मतलब हम लोग जब प्रिपेयर करते थे चीजों के लिए, देखते थे, तो वो बिल्कुल अनाथ वाला हाल होता था, खुद ही देखते थे, खुद ही सॉल्व करते थे। तो ऐसा होता था बहुत। कुछ कोचिंग होते थे जो बड़े महंगे और वो सब चीजें तो मैंने कभी करी नहीं, मैंने खुद से ही पढ़ा था। जब ये प्लेटफॉर्म दिखता है ना कि ये क्या है, ये तो ऐसी हैंड होल्डिंग है यहाँ पे कि आप किसी भी चीज के लिए इतने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, फॉर्म्स आपको फिल करना, मतलब ऐसे बता रहे, इतना बेस्ट है ये। मतलब आप बहुत अच्छे फेज में हो आप लोग, जो कि आप लोगों को इतनी हैंड होल्डिंग मिल रही है ना। पहली तो बात तो ये है। दूसरी चीज ये है, एग्जाम से रिलेटेड मैं यही कहूंगा कि